हेलो एवरीवन, आप सबको आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। डिस्टोपिया टूरिज्म में आप सबका स्वागत। और हमारे साथ जुड़े हैं जयंत रथ जी, पेनिसिया जी और राज जी। आप सबका स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच Thank you, सर। sir. स्वागत है सबों का। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर सभी का स्वागत है सर। जी, आज हम जो प्रीवियस स्ट्रीम जो हमारी थी उसी का कंटिन्यूएशन है। और प्रीवियसली हम डिबंक कर रहे थे एक पैनल डिस्कशन जिसमें इस्लाम वर्सेस साइंटिज्म पर बात हो रही थी। और इसको होस्ट कर रहे थे मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी और डैनियल हकीकतू और शेख आमीन। वो भी अपना नुक्ते नज़र रख रहे थे साइंस के ऊपर, साइंटिज्म पर। तो अगर आप पहला भाग देखें तो उसमें हमने अभी तक तो जितना भी हमने फिलोसॉफिकली उसे डिबंक कर दिया है, पर अभी हम शायद 28th मिनट पर थे। आई एम राइट राज, आई डोंट नो द एग्जैक्ट मिनट। 28th मिनट पर थे हम। तो जी, अभी हम 23rd मिनट पे थे सर। 23rd मिनट पर। तो 23rd मिनट पर आज हम डिस्कस करेंगे। और जो डैनियल हकीकतू ने जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया है और एवोल्यूशन पर जो बात किया है उसे अभी डिबंक करेंगे जयंत रथ जी और पेनिसिया। तो क्या हम वो वीडियो लगा सकते हैं सर? Yes, sir, please. जी सर, बिल्कुल, एक मिनट। We have to recognize the power that is at play. other species, then scientists usually reject that theory. It's through mean. What you're learning in school is a lie, is a scam, or we say, yeah, there is a possibility of reconciliation. We do say the first thing, it is a lie. शाहिद भाई भी आए। जी जी, शायद भाई। मगर आज हम जो है जितना भी हम लोग आज क्लोज डिस्कशन है, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग कॉलर्स को नहीं लेंगे। जी, पहले तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। म्यूट हो जाए सर। जी। But we want to challenge the evidence. Mhm. So we need to be a bit more inquisitive, a bit more in your face, and say that show me how this evidence proves what you're saying. And when there's really no, it's so very they start, because I mean, that's when we Evolution, against the Quran or against the Sunnah, evolution and your opinion regarding Darwinian evolution. But do you think, is there any difference between micro evolution and macro evolution? And is there any chance that one of them can be according to the Quran, or at least is not against the Quran or against the Sunnah? Is there any possibility that we can accept at least microevolution? Yeah, so what do we mean by microevolution? Microevolution, just as Sheikh mentioned, that it's small adaptations within a species. This is something that the knowledge of it far predates Darwin. This is just known since the beginning of agriculture, because when it comes to flora, plants, or animals, domesticated plants, you can breed them for certain kinds of characteristics and qualities. So if you want a cow with more milk, or you want corn that has more grains of corn, or more corn on it, then you can selectively, the farmer or the rancher will select the best corn and will breed it, the best cows, and breed them so that the next generation of cow will have more milk, will have more food, be more productive. So this has been happening for thousands of years, and it's actually this Charles Darwin in the 19th century, he observed this and he used it as an analogy to say that, well, we don't have to have a farmer select. Nature can select. This is what natural selection is. James sir, your comments on this? Sir, जैसे कि
मान लो डार्विन की बात करें तो डार्विन अकॉर्डिंग टू डैनियल कि डार्विन चेंज द human artificial selection and place the natural selection in the place of that and publish it as a new theory. उनका ये कहना है. तो मेरी ऑब्जेक्शन ये है कि मान लो नेचर सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या कौन सिलेक्ट कर रहा है? कोई क्रिएटर सिलेक्ट कर रहा है. इफ क्रिएटर इज सिलेक्टिंग द इवोल्यूशन then that creator in my view must be a very duffer, because 99% of all evolved offspring has been got extinct. If that creator is creating the species, then 99% unsuccessful creator that is. जी बिल्कुल. और यहाँ पर ये बहुत क्लेवरली दो चीजों को मिला रहे हैं. माइक्रो एडेप्टेशन, माइक्रो इवोल्यूशन. एडेप्टेशन को इवोल्यूशन का नाम दे रहे हैं, पहली बात. Adaptation also has a role in evolution, but adaptation जो है वो जो माइक्रो इवोल्यूशन, एक तो बात है कि इनके ऊपर है कि they have to show in their scriptures if micro evolution is mentioned there. Yes. If micro evolution can happen, then why not macro evolution can happen? If human can form new breed, then nature cannot form a new species. If human can breed and form a new variety desired or with desired qualities in a small span of time, then how the nature cannot form a new species? तो ये तो एक तो उनको दिखाना पड़ेगा कि माइक्रो इवोल्यूशन उनकी स्क्रिप्चर में है, और व्हाई ओनली माइक्रो इवोल्यूशन इज पॉसिबल एंड मैक्रो इवोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल. और उनमें पहले तो सबको डिफाइन करना पड़ेगा कि कब हम बोलेंगे कि न्यू स्पीसीज आएगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए स्पीसीज? स्पीसीज को हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्पीसीज किसको डिफाइन करते हैं? स्पीसीज के लिए देयर आर डिफरेंट क्राइटेरिया टू बिकम अ स्पीसीज. Initially it was only the morphological basis which are called as taxonomical species concept. Yes. हम ऊपरी कैरेक्टर को मिला के taxonomical species concept देते थे. Then from the Ernst Mayr it has been concluded that the reproductive isolation must be taken into consideration to become a species. That means to become a species, not only the morphological differences, the reproductive isolation must be a criteria. That means the individual must be reproductively isolated from the initial organisms so that we can call them as a new species. And after the evolution concept of the phylogenetic concept, now we are considering all the threes. For becoming a species, the individuals must be morphologically almost alike, or maybe little bit they are different. They must have a property to interpret with each other, and they must have a common ancestor. तो 3 क्राइटेरिया को फिल अप करने के बाद ही हम किसी ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को एक स्पीसीज हम कहते हैं. तो इनके क्राइटेरिया में स्पीसीज कब बन जाएगा और माइक्रो इवोल्यूशन कब बॉर्डर लाइन तक है और मैक्रो इवोल्यूशन कब स्टार्ट हो जाएगा, ये भी तो क्लियर होना बाकी. थैंक यू वेरी मच सर. तनिषा जी, आपका कुछ स्टेटमेंट इस पे? यस सर. एक्चुअली सर देखिए, यहाँ पे वो 2 चीजों की बात कर रहे हैं, बेसिकली माइक्रो इवोल्यूशन और मैक्रो इवोल्यूशन, जो जैन सर ने एकदम परफेक्टली डिफाइन किया. माइक्रो इवोल्यूशन एक स्मॉल एडेप्टेशन है विद इन अ स्पीशीज, सो विदाउट चेंजिंग द स्पीशीज इटसेल्फ. इसको बेसिकली हम लोग आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी बोलते हैं सर. इसका बेस्ट एग्जांपल है डॉग्स, ब्रीड ऑफ डॉग्स. So we can find so many different varieties of dogs, but all dogs have a single species. तो सर जो religious लोग हैं, fundamentalists, they accept micro evolution. Why? Because there is no change in the species. But they object macro evolution. Why? Because in macro evolution, अगर आप time span भी देखो सर, micro evolution का hardly few thousand years, while macro evolution requires hundreds of thousands, लाख से भी ऊपर, sometime it goes to million. जैसे फॉर एग्जांपल निएंडरथल स्पीशीज जो है और ह्यूमन स्पीशीज है, इट टुक लाइक 800,000 years, मतलब 8 लाख साल पहले ये सोचा गया है कि दोस हैव सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर.
Yes, they So, diverged. problem यहाँ पे क्या है? They don't want to accept macro evolution because that will ultimately debunk their Adam and Eve story basically. Yes, So creationism. ये major reason है. They don't have any problem in accepting micro evolution, but they reject macro evolution. और जैसे जैन सर बोल रहे थे, उनका definition of speciation जो है वो see the species will be separated when will be called a separate species when they their sexual intercourse won't produce a sexually active progeny. Okay, Yes. तो हम उन दोनों को different species बोलेंगे. तो ये major reason है why religion attack evolution और especially macro evolution. बहुत शुक्रिया. तो जैसा ऑडियंस ने अभी देखा, एक मिनट, एक बात और मैं भूल गया था. अब जो पुराने हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस थी, दैट वाज ओनली प्योर लाइन सिलेक्शन. Pure line selection is a continuous inbreeding process. After certain generation, it actually harm the breeding process, because if certain qualities get increased beyond the limit, then other qualities of that organism will get reduced, because organism is not a machine. Even machine also has a limitations. If you increase the milking amount of an organism after certain liters of production limit, then its immunity, its lifespan, its reproductive capacity will be certainly going to reduce, because all the biometabolic process will be directed towards that milking process. In inbreeding process also, it is not going to produce much more varieties. After certain stage, it is inbreeding depression will be caused, and to correct that inbreeding depression, outbreeding is also necessary. Somewhere outcrossing was permitted where the people were intelligent naturally, and otherwise after certain stage that organism becomes harmful, that inbreeding process become harmful. Absolutely, because जो micro evolution की ये बात कर रहे हैं, that basically what they understand by micro evolution is subtle genetic changes and adaptations. तो अगर आप genetic modifications human induced हो या natural induced हो, अगर उसको continuous inbreeding करेंगे, hybrid की जहां तक ये example दे रहे थे plants and crops की, तो I don't think Pikachu knows that if you grow a hybrid plant, even a farmer knows that if you grow a hybrid plant, you won't have seeds for the next generation. Even a small farmer knows this. We know that. We grow little plants, herbs in our garden. We know that if we grow hybrids, then we won't get seeds for the next, because the genetic modifications have been inbred and done so many times that effectively that plant has lost its reproductive capability. जो अभी बात दोनों जयंत सर ने और पेनिशिया सर ने जो बताई. बिल्कुल. जी, आपने उसका नाम का भी आपने हाइब्रिड कर दिया, पिकाचू कर दिया हकीकचू से, तो इसके नाम का भी आपने पिकाचू साउंड्स मोर क्यूट. आपने नाम का भी म्यूटेशन कर दिया इसके. हाँ सर, इनफैक्ट ये उसने खुद ही एंडोर्स किया था, ही लाइक्स दैट नेम. यस. So I call him Pikachu प्यार से. Pikachu is a very cute name. Yes, yes. चलिए आगे बढ़ते हैं सर. Let's move forward. ठीक है? Yes, sir. Now, whether this idea that nature can select as opposed to a farmer, this is, nonsense actually, and there's philosophical refutations of this idea because. Sorry to stop it at 30 seconds, but I would like to say one thing यहाँ पे कि in one line हमारे पिकाचू साहब ने ये चीज कह दिया कि nature can also select is a stupid idea. In fact, every selection process starts from nature. ये fact है और ये he himself knows. Moving forward. Because, and this is the book that I was going to mention, What Darwin Got Wrong. It's written by an atheist. His name is Jerry Fodor, philosopher. He was a very prominent philosopher. Said that this analogy, like Darwin is doing a kind of qiyas here, but his qiyas is mistaken. And you cannot take this artificial case of a farmer. Koram sir, don't you find it cute when white people try to speak Arabic? Qiyas.
It's not chaos, it's chaos. Pikachu sahab. So cute. Chaos. Absolutely, the chaos is that's like inferring something Yes. jurisdiction induction बोलते हैं उसे कुछ. I find it very matlab, cute and funny. You know, when white Yeah. people they convert to Islam, and immediately they become sheikh and they try to do chaos. जेरी फेदर का मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा एक आर्टिकल पेनिसिया ने भिजाया था. यस सर, यस सर. वो दो हाँ. लिंक है सर, मैंने जेरी पॉटर के आपको 2 लिंक भेजे हैं. ओके वो ओके प्लीज ओके. शेयर कर दीजिए थोड़ा सा चलने के बाद, क्योंकि इसको अभी हम डीबंक आगे करना चलते हैं. जरूरी है सर. जी, अभी हम आगे चलते हैं सर. चलिए. बिल्कुल यस सर. बिल्कुल. Who is artificially breeding animals based on what he desires, more milk or more food or whatever. You cannot analogize that to nature doing this. In fact, this is a false analogy. So this book was very controversial. And actually, what was interesting is that the author, he's an atheist. He says, I have no dog in the fight of religion versus atheism. But I am so shocked at the number of atheists and scientists and academics telling me not to write this book. They say, we can't find a problem with your argument, but we don't want you to write this because you're giving all this ammunition to... This is our last hope. Yeah, exactly. दोनों एक्सपर्ट से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि is it true what Mr. Pikachu is saying right here, that certain philosopher and no scientist could give an answer to that philosopher when he said that nature cannot select, only man can select? Yes, sir, please answer this. Actually, he is sounding like more philosopher than a science student. Yes. मुझे लगता है कि he don't have a proper science background. He may have gone arranged some certificate of science, but after that he may gone to the philosophy of some science to ridicule the scientific concept. May have he in the childhood he has been intoxicated by some methods or ancient books. Then the real science became unable to enter into himself. तो ये मुझे लग रहा है इनकी व्यू से, बट वो तो पर्सनल बात हो गई. मैं अभी ये जो बात मैं कहूँ कि नेचर सिलेक्ट की जो बात, नेचुरल सिलेक्शन की बात जो कह रहे हैं कि मान लो नेचर सिलेक्ट नहीं कर रहा है तो कौन सिलेक्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू हिम, कि कोई ऐसा है कि जो डिजायर्ड करके सिलेक्ट कर रहा है. मैंने अकॉर्डिंग टू हिम डिजायर जो है वो ह्यूमन या ह्यूमन के लिए होना चाहिए. मींस बिल्कुल बिल्कुल ये इन्फर कर रहे हैं. ये एक ऐसा थिंकिंग होता है कि वी आर थिंकिंग ह्यूमन मस्ट बी द पिनाकल ऑफ द इवोल्यूशन. Yes. Human will be boss of this planet. All the Yes. species are for service to the humankind. तो इनको ये इस माइंडसेट के हिसाब से ही इज ट्राइंग टू कन्वे. और दूसरी बात है कि जैसे मेरे पास मेरा एक फ्रेंड कोई एक गिफ्ट लेके आए और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतने कॉस्टली गिफ्ट लेके आया है, तो वो बोले कि मैं इसको परचेज करके लेके आया हूँ, लेकिन मुझे पता है कि परचेज कर नहीं सकता है. वो प्रॉपर मुझे आंसर नहीं दे पा रहा है कि वो कहाँ से लेके आया, कैसे लेके आया. और एक फ्रेंड बोल रहा है कि अरे वो तो नहीं लाया, मैंने उसको ला के दिया हूँ क्योंकि मेरे को सांता ने दिया है, पिछले रात को सांता क्लॉज ने दिया है. तो मैं इन दोनों में से डिसाइड करूं. एक प्रॉपर आंसर नहीं दे पा रहा है और दूसरा कह रहा है पक्का पक्का मुझे बिलीव है कि मुझे रात के 12 बजे कल सांता क्लॉज ने दिया था, मैंने उसको पकड़ाया हूं. तो ये वाली आर्गुमेंट है. मान लो नेचर सिलेक्ट में आपको प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा है तो मेरे वाला आंसर सही है, जो मेरे ख्याली पुलाव है वो आंसर सही है कि वो बैठ के. और वो मैंने बताया कि मान लो दैट क्रिएटर इज सिलेक्टिंग, दैट क्रिएटर मस्ट बी अ डफर, क्योंकि बिकॉज 99% ऑफ सिलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स हैज बीन गॉन एक्सटिंक्ट in our earth, Yes. in our Yes. planet. That means 100 मार्क के पेपर में से वो 99 क्वेश्चन फेल हो चुका है वो क्रिएटर पे. 1 मार्क उसको मिल रहा है 100 मार्क में से. 1% of species is actually now present. 5 episode of mass extinction has been happened where Yes. going toward the 6 mass extinction in the rapid speed than ever. Yes. तो इसका मतलब ये है कि वो क्रिएटर है तो फिर वो क्रिएटर बड़ा डफर होगा अकॉर्डिंग टू मी. जी, थैंक यू सर. बिकॉज जैसा कि जयंत रथ सर ने कहा, he is absolutely correct. The earth has seen 5 massive mass extinctions, including the great dying, and it has been classified into various epochs. Okay,
when you go into the ancient geology and paleontology studies, then you find all these things. So what Jain sir is trying to infer, ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि पिकाचू साहब ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नेचर सिलेक्शन नहीं कर सकती, जबकि उनको यही समझ में नहीं आता, या वो समझ ही सकते हैं इस चीज को कि विदाउट नेचर सिलेक्शन इटसेल्फ इज नॉट पॉसिबल। पेनिशा जी, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये फॉल्स इक्विवेलेंस जो रेज कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? राज सर, यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैंने जो 2 लिंक भेजे हैं उसको जरा प्लीज शेयर कीजिए सर, क्योंकि ये बहुत ही इस स्टेज पे हमें इसको कंप्लीट डिबंक करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी व्हाट्सएप किया है सर, प्लीज उसको मुझे व्हाट्सएप कीजिए कोराम सर, मैं शो करता हूँ। मैं अभी व्हाट्सएप किया है आपको, ऑलरेडी डन। सर वो इसलिए जरूरी है, मैं कुछ बैकग्राउंड देना चाहूंगा। जी सर प्लीज। एक वायर्ड का भी है और कुछ आपका पीडीएफ भी है उसपे। हाँ बस एक वायर्ड का पहले कर लीजिए सर, वायर्ड का पहले कीजिए। वो बेसिकली नेट जियो जर्नल का आर्टिकल है सर, वो वायर्ड ने बाद में उसको पब्लिश किया है। इट्स आर्टिकल पब्लिश्ड इन अ ऑथेंटिक जर्नल बेसिकली। तो नेट जियो का सब्सक्रिप्शन चाहिए था, तो इसलिए मैंने वहां से उठाया। तो सर मैं कुछ कहना चाहूंगा बेसिकली, ये जो ये सर आप कंटिन्यू रखें सर, मैं शो कर रहा हूँ। यस सर। सो ये जो सर थियरी ऑफ इवोल्यूशन जो है सर, बेसिकली इसका जो रिसर्च है जो कैरी आउट करते हैं, उन साइंटिस्ट को इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने रिचर्ड डॉकिंस का नाम सुना होगा। तो ये जो, हाँ सर प्लीज, इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड दिस फिलोसोफर कॉल्ड जेरी फॉडर। ये मोटिव जानना सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट लाइन जो है थोड़ा बड़ा कर लेंगे तो ठीक रहेगा, मैं समझता हूँ, फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स। हाँ तो थोड़ा हाँ बड़ा सर, नजर आ रहा होगा। हाँ, नजर अगर आ रहा है तो ठीक है उन्हें, बिकॉज यहाँ पे एटलीस्ट जो है विजिबिलिटी रहना चाहिए। क्योंकि हमारे जो लोग जी, क्योंकि जो लोग अभी YouTube पर जो पैनल है, मतलब मैं उनका जो वाजिदी वगैरह का पैनल है, उनका वैसे भी मायोपिक विजन है और उनको जरूरत है एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट की। इनफैक्ट मैं उसी पे बात करना चाह रहा था सर। सर अगर पहले इस पे अगर देखोगे, ये जो ये है, इनका नाम जेरी फॉडर, ही इज बेसिकली रटगर यूनिवर्सिटी के फिलोसॉफी के प्रोफेसर है। तो सर इनके इश्यूज थे इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के साथ। अगर आप लास्ट लाइन देखोगे, मोटिवेटेड बाय हिज irritation with evolutionary psychology, a subdiscipline he believes as Darwinism at its worst। बेसिकली सर डार्विनिज्म ऐसे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता साइंस में, और इनफैक्ट डार्विन की जो कॉन्सेप्ट है, ये जयकांत सर भी बता देंगे, वो काफी मॉडिफाइड हुए हैं सर। जैसे डार्विन ने जब कॉन्सेप्ट दिया था तो उसको जेनेटिक्स के बारे में कुछ पता नहीं था सर, पर जब जीन जेनेटिक्स हमें पता चला तो जेनेटिक्स क्लियरली सपोर्टेड, मतलब उसका इतना बेटर एविडेंस मिला जेनेटिक्स से। तो and of course the other domains such as comparative anatomy, paleontology, geology, ये सब सर इवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। और सर मैं रिसर्च फील्ड में करीब 15 साल से हूँ, मैंने एक आर्टिकल नहीं देखा अगेंस्ट इवोल्यूशन। तो ये एक प्रोपेगेंडा है सर, बेसिकली ये क्रिएशनिस्ट का प्रोपेगेंडा होता है। तो ये आर्टिकल और ये जो इसने जो बुक छापा है वो एक अंडर प्रोपेगेंडा है। तो सर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, एक दूसरा आर्टिकल है नेचर का, वो जरा उसको दिखाइए। नेचर का वायर्ड का आर्टिकल में से मुझे इतना ही लेना था। ये वायर्ड का आर्टिकल बहुत ही अच्छा है सर, अगर आप चाहो तो प्लीज व्यूअर को भी इसका लिंक दे दीजिए। मैं अभी लिंक शेयर कर देता हूँ व्यूअर्स को फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑडियंस, ताकि उनको भी समझना चाहिए कि ये कैसे प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। ये बेसिकली सर जो क्रिश्चियन मिशनरीज है वहां से, उनसे प्रोपेगेंडा चलता है। बेसिकली इवेंजेलिकल्स बोलते हैं इनको, यूएस में ये काफी एक्टिव ग्रुप है।
तो ये हमेशा इवोल्यूशन को टारगेट करते हैं, और इन्हीं के आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली ये जो IRA जैसे ऑर्गेनाइजेशंस है, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, सारे उसी उन्हीं को से कैरी कॉपी आउट करते हैं सर. They are actually the anomalies of this entire करेक्ट propaganda. अरे पूरा करेक्ट कॉपी करेक्ट करते हैं उन्हीं के arguments. सर वो पीडीएफ जरा दिखाइए ना, पीडीएफ मैं दिखा रहा हूँ, मैं जो दिखा रहा नेचर की पीडीएफ है, एक मैं पैराग्राफ दिखाना चाहता हूँ, और वो पैराग्राफ से क्लियर कट होगा ये प्रोपेगेंडा कैसे चलाते हैं. हूँ. एक सेकंड मैं शो कर रहा हूँ. एक प्लीज पैराग्राफ रीड आउट कीजिए. वो पैराग्राफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ऑडियंस को समझ में आएगा कि ये कैसी चीज आती है और उसमें उसको साइंस भी कैसे डिबंक करता है. एक मिनट. Actually, scientists have doubt or may modify others' theory regarding evolution. They may have doubts regarding how evolution happening or why evolution happening. No scientist have if evolution happening. Evolution is a fact. It is well accepted in every discipline of the science. They are only the doubt or understanding in the procedural form, procedural in theories, in analysis of facts, analysis of evidences. There are doubts. सर फर्स्ट पेज में मिसगाइडेड अटैक ऑन इवोल्यूशन में, सर फर्स्ट पेज मिसगाइडेड अटैक ऑन इवोल्यूशन. बड़ा करेगा इसके, करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये मुझे भी दिख रहा है नहीं. तो ये इसमें ऑप्शन नहीं इसमें आ रहा है. मैं दूसरी चीज इसको बड़ा नहीं हो सकता. फॉर्मेट में मैं करता हूँ. रुकिए. सर मीनवाइल मैं जैन सर का पॉइंट पुट फॉरवर्ड करना चाहता हूँ. जैन सर ने एक बहुत ही बढ़िया ये पॉइंट जो बताया है. तो सर ये बेसिकली ना ये जो क्रिएशनिस्ट है, ये एक एजेंडा के तहत चलते हैं. और सर इसको 353 पेज जो फर्स्ट पेज है उसका थर्ड कॉलम लास्ट पैराग्राफ. ठीक है. थर्ड कॉलम विच स्टार्ट्स लाइक द ऑथर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डार्विनिज्म. सर और इसको पढ़िएगा और बढ़ेगा. हाँ और बड़ा कीजिए सर, और थोड़ा बड़ा कीजिए, और इसको सर आप ना रीड आउट कीजिए. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ यहाँ से है. व्हाट डार्विन गॉट रॉन्ग बाय जेरी. द ऑथर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट. मिल गया द ऑथर. हाँ ये रहा. ये बस. हाँ यस सर, यस परफेक्ट. सर इसको एक बार पढ़ लीजिए आप. मैं पढ़ जोर से. The author's argument against Darwinism boils down to a two-pronged attack. First, they claim that biologists' emphasis on ecological or exogenous factors is misplaced because endogenous genetic and developmental constraints play a crucial part in generating organic forms. Second, they argue that natural selection cannot be an evolutionary mechanism because evolution is a historical process and history is just one damned thing after another with no overarching logic. सर अभी मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ. उनका क्लेम क्या था सर, जो फिनोटिपिक ट्रेट्स है, ये बोल रहे हैं कि इट कैन नॉट ऑकर, इट कैन नॉट अराइज फ्रॉम द नेचुरल सिलेक्शन. तो उनका जो आर्ग्यूमेंट एक ये सा था कि उन्होंने इनको एज अ हिस्टोरिकल इवेंट की तरह रखा था सर. दे डिड नॉट लुक्ड इनटू द जेनेटिक एस्पेक्ट, and the reason is very simple. They are not experts basically. So they are not scientists. तो इसलिए उनका उतना नॉलेज नहीं है उस फील्ड में. और ये जो फिलोसोफर है, दे ट्राई टू थिंक फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव विदाउट अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग मैकेनिज्म, और उसकी वजह से दे कम अप विद अ स्टूपिड बुक लाइक व्हाई डार्विन गॉट रॉन्ग. तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर. फिलोसोफर्स अपना इंटरप्रिटेशन देते हैं और वो साइंस को समझ नहीं पाते हैं, और इसलिए और इसका फायदा जो उठाते हैं वो ये क्रिएशनिस्ट उठाते हैं सर. और जो डैनियल हिकेकोची का जो स्टेटमेंट था कि इवन साइंटिस्ट अपोज हिम फॉर राइटिंग दिस बुक, इट इज नॉट ट्रू सर. वो एक बोंगी थी. इट वाज अ ब्लेटेंट लाई. ओके, उसने झूठ बोला सर. I hope it is clear. जी, it is very clear. It is very clear because यहाँ जो है ये false equivalences और ऐसे इंसान की किताब वही काम कर रहे हैं जो इनके
मुफ्ती साहब करते हैं, वो जो चचा जान की किताब दिखा के इस्लाम को Yes, prove ये करते हैं। किताब का जो है जिक्र उन्होंने जब गुलजार एलिया आया था उनके प्रोग्राम में, तो शायद यही किताब का उसने जिक्र कर दिया। तो उस वक्त अगर जयंत रथ जी या पेनिसिया होता तो अच्छा काउंटर कर देते मुफ्ती को। तो ये पूरी चलिए, मैं हम्टी डम्टी किया उन्होंने, जबरदस्त हम्टी डम्टी Sir, को so भी। sir, so half knowledge is very dangerous. Absolutely. वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। It's better you चलिए keep your mouth shut than peddling all nonsense. Yes, sir. Yes, sir. You आगे can चलते please हैं। go ahead. Move on. जी जी जी। So when it comes to microevolution, this is known. This is something that's ma'ruf. But when it comes to the macroevolution, that new species can come from previous species, then this is not something that is established or proven, despite the claims that it is. But in fact, it is not. All that is proven is microevolution in the laboratory, which is something that is known. Jain sir, your comments. Is it not proven beyond any doubt that new species exist? No, evolution is a fact. Every scientists accept that, and all the evidences of evolution, fossil record, and everything proves that evolution is a fact. New species originating, all the biodiversity which we are seeing now, they are evolved from the ancestral stocks. तो और ह्यूमन के सामने भी कई सारे स्पीसीज इवॉल्व हुए हैं पिछले 100-200 ईयर्स में। देखेंगे कि कई सारे रैबिट्स, वो एक लिजर्ड भी शायद इवॉल्व हुए हैं। बट ये लैब में इवोल्यूशन की जो बात कर रहे हैं, वो लैब में इवोल्यूशन कैसे हो पाएगी? क्योंकि इवोल्यूशन के लिए इट नीड्स एटलीस्ट 100 to 1000 ऑफ इयर्स फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज। तो अगर एक जी सर, एक लाइन में अगर समराइज करें तो इज मिस्टर पिकाचू आउटराइट लाइंग हियर? Lying, and he is accepting about the micro evolution, but what is the basis of that accepting also? ठीक है सर, चलिए आगे चलते हैं। So it's not a big discovery that, okay, if you put fruit flies and after many generations, or E. coli, after thousands of generations, they'll develop some new phenotypes or new traits. That's something that's known, but the evolutionists will say, this is proof of evolution. But no, you've only proven something that was already known. Microevolution. This is not, you're not showing how you can develop an entire new species. So this is a kind of sleight of hand or a kind of trick that they use. Jain sir, your comment? Sir, Darwin के पीछे सारे लगे हुए, but Darwin actually was not the only evolutionary biologist who proposed the theory. But Darwin की जो grandfather थे, वो एक्चुअली बायोलॉजिस्ट थे और एक फिजिशियन भी थे, रिनाउंड फिजिशियन, और वेल्दी फैमिली था डार्विन का। डार्विन से वो भी इवोल्यूशन को मानते थे, यानी कि डार्विन की जो भी इनिशियल नॉलेज है, इनिशियल जो उनकी मतलब क्वेस्ट हुई है कि इस फील्ड में रिसर्च करने को, उनके ग्रैंडफादर से उनको मिला है। और वो भी ग्रैंडफादर उनके भी इवोल्यूशन का पहले वो बता रहे थे कि अर्ली प्रोटोप्लाज्मिक कुछ है, वो एक रिनाउंड फैमिली से बिलोंग करते हैं। और डार्विन ने करीब 22 पब्लिकेशंस और बहुत सारी बुक्स लिखे हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज खाली नहीं लिखे हैं, और ये ऑर्किड फर्टिलाइजेशन पे लिखे हैं, वो प्लांट मूवमेंट में भी उन्होंने वर्क किए, रिसर्च किए और उसको भी लिखे हैं। वेरिएशन अमंग एनिमल्स एंड प्लांट्स, डोमेस्टिकेटेड प्लांट एनिमल पे भी उन्होंने काम किए। और उन्होंने 6 साल तो वॉयज किए हैं खाली डिफरेंट क्लाइमेट में, एरियाज में, और उन्होंने सबूत डाटा पूरा दिए हैं। चाहे वो डार्विन फिंचेस हो, गैलापागोस आइलैंड में जो उन्होंने स्मॉल बर्ड्स के बारे में उन्होंने बताया है, तो वो एडाप्टिव रेडिएशन के विषय में वो सारे फैक्चुअल हैं, ऐसे कहानी नहीं बनाए सब चीजें। तो इवोल्यूशन इसलिए स्पीसीज, एवरी स्पीसीज इज डायनामिक एंड इट इज फ्लोइंग and it can convert into other species, but it takes many years, and we cannot create a species inside the lab because we cannot provide all the accessory environmental condition inside the lab, and we cannot give that much of time to a species. तो इसका मतलब हम कोई मंकी को बांध के रख के ह्यूमन लैब में नहीं बना सकते, because it takes very long time, and the climatic conditions in every moment we cannot give it inside the laboratory. जी बहुत शुक्रिया। पेनिसिया जी, आपका कोई कमेंट इस पे? सर यस सर, जयकांत सर ने बहुत ही अच्छे से बताया, उसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा सर।
ये जो हकीकाचू जो बोल रहा था बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट लैब एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला एंड इकोलाई. सो सर ये जो दो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसको आर्टिफिशियल स्पीशिएशन बोलते हैं सर. इट हैज बीन कैरिड आउट एक्सटेंसिवली इन द लैब. नाउ जयकांत सर ने जो बोला वो एकदम परफेक्ट था कि इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रीड अ मंकी एंड गेट अ न्यू जनरेशन इन द लैब. व्हाई? बिकॉज मंकी की जो एज है सर, लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा है, पर ड्रोसोफिला की जो लाइफ साइकिल है वो 21 डेज की है और इकोलाई की तो उससे भी कम है सर. तो that's why scientists did experiment on Drosophila and they did find that entirely new species could be generated from a small population. So sir they came up with various reasons उसमें जिसमें it is called as allopatric, peripatric, parapatric, sympatric and artificial. तो सर हमें एक स्पेशल स्ट्रीम लगेगी इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए और इसमें जयकांत सर की एक्सपर्टीज भी है अपने पास. तो सर ये स्पीशिएशन प्रूवन है सर. और जैसे सर ने अभी जयकांत सर ने और एक लिजर्ड के बारे में बात की तो टू डिफरेंट वन स्पीशीज ऑफ लिजर्ड्स वर आइसोलेटेड ऑन अ पर्टिकुलर आइलैंड और सर वो डिफरेंट स्पीशीज में कन्वर्ट हुई कंपेयर टू मेनलैंड लिजर्ड स्पीशीज. तो सर एंड वो ये काफी कम समय में हुआ है सर, प्रोबेबली इन फ्यू डिकेड. And they are no longer able to mate and generate ये sexually active progeny. तो इससे ये प्रूव होता है सर स्पीशिएशन इज एक्चुअली अ फैक्ट. तो इससे क्या साबित होता है सर? मैक्रो इवोल्यूशन इज ट्रू which they want to refute. सर बिल्कुल सही. मैंने दोनों एक्सपर्ट्स का कमेंट भी ले लिया. अब मैं थोड़ी इस पे एक अपनी ओपिनियन रख देता हूँ, फिर आगे चलेंगे. इनफैक्ट अगर आप एक्सेप्ट करते हैं कि माइक्रो इवोल्यूशन इज पॉसिबल और खुद ही आपने एग्जांपल दिया इस चीज का कि मैं फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला की बात कर रहा हूँ या इकोलाई की बात कर रहा हूँ, तो छोटे छोटे माइक्रो म्यूटेशंस होते 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 उनकी 400 जनरेशंस के बाद आपने देखा कि अब वो जो जनरेशन आपके पास है आप उसको वापस कोशिश कीजिए मेट कराने की अपने ओरिजिनल पेरेंट्स से, उसकी मेटिंग पॉसिबल नहीं है. So congratulations, you have a new species in your hand. That is called macroevolution, you fool. Congratulations, you have proven macroevolution. आपने प्रूव कर दिया macroevolution को. सर मैं एक बात बोलता हूँ कि there is a very deep rooted problem because this all evolution in the Muslim world was started by two people. The two culprits, one is our own Zakir Naik and the second one is Harun Yahya, टर्की का जो एक फिलोसोफर था. एक तो मेडिकल डॉक्टर था, नहीं था, क्यों था, किस लिए था. And that Didat guy, Ahmad Didat. No, Ahmad Didat was not somebody who did that, who was so intense into debunking evolution. But Zakir Naik, because he had a medical degree, that's what they say. Someone very similar to Dr. Armani. I mean, वो 90s का डॉक्टर अरमानी था वो. तो उसने जो है उसने एक तो ये लेके आया सूडो साइंस और जो दूसरा है ये हारून याह्या था जिसने ऐसी बोंगी मारा इसमें. तो दीज आर द टू पीपल. अब इसका प्रॉब्लम ये है कि इन रियलिटी आई मीन लेट्स देखिए हम we cannot change the entire Muslim community and tell them to become atheists, but we can make them reasonable कि इतना ब्लाइंड फेथ है कि यार आप कम से कम कुरान को पढ़ो और एवोल्यूशन को पढ़ो. आप पहले ये तो फाइंड आउट करो कि इज योर कुरान समवेयर और द अदर होस्टाइल टुवर्ड्स डार्विन थियरी ऑफ एवोल्यूशन. क्या डार्विन थियरी आप पढ़ने से क्या आपका ईमान खत्म हो रहा है? क्या डार्विन थियरी एक्सेप्ट करने से आप जो है गैर मुस्लिम हो जाते, मुल्हिद हो जाते, एथीस्ट बन जाते? पहले ये तो सोचो यार. बिकॉज फॉर क्रिश्चियनिटी देयर वाज अ प्रॉब्लम. बिकॉज फॉर क्रिश्चियनिटी देयर वाज अ क्लियर प्रॉब्लम. बाइबल में दुनिया 6000 साल पुरानी है, आपके हाथ में मिलियन ईयर ओल्ड फॉसाइल है और एक हाथ में आपके पास बाइबल है, तो आपको प्रॉब्लम है. क्या कुरान से आपको ये प्रॉब्लम हो सकता? तो इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिकंसिलिएशन? द सेम अप्लाइज टू हिंदुइज्म एंड एवरीबॉडी. कि हमारे पास जो इतने हॉस्टाइल हो रहे हैं लोग मुस्लिम्स और हिंदूज में, क्या इनको जरूरी है? सो विच मीन्स दैट दे आर जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं. जो क्रिश्चियन एपोलॉजिस्ट बोले वो लिया और कॉपी पेस्ट कर दिया. दैट इज व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ.
वही तो माइक्रो Please continue. इवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब आप मैक्रो को ऑटोमेटिकली आपने सपोर्ट कर दिया। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड। Anyways, let's इतना भी move नहीं समझ forward. पा रहे ये। जी ये ऐसा बिल्कुल. है कि सर जैसे कि आप हम एक एक कदम वन स्टेप चलने को अप्रूव करते हैं, बट 1 किलोमीटर तक पहुंच जाने को डिसप्रूव करते हैं। जी मतलब आप ये एक वो एक स्टेप चलते चल रहिए, जब हाँ 1 किलोमीटर हो जाएगा उसको हम नहीं मानेंगे। उसको नहीं मानेंगे। This is such a childish approach. Anyways, Very moving juvenile. forward. Yeah. Very juvenile. Moving forward. What makes the situation worse that a lot of scholars agree, majority of the scholars agree that Darwinian evolution, we cannot reconcile it with the Quran, with the nusus, and I always call it Darwinian scam. So it is a big scam, and it's happening in all schools and colleges, universities around the world, including our Islamic schools. So do we have any alternative? I mean, we teach our students biology, biochemistry, and things like that. They learn the same garbage they learn in high school. Or तो ऑडियंस ने भी सुना कमेंट लेने से पहले। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मुफ्ती यासिर नदीम अल बवासीर अल वाजिदी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, साइंस, बायोलॉजी, बीइंग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स इज गार्बेज। आपने सुना क्या वर्ड यूज किया इन्होंने? डॉक्टर्स, बायोकेमिस्ट, इंजीनियर्स के लिए गार्बेज। And yesterday you were saying कि इंडिया शुड साइंस पे साइंस करना चाहिए, इंडिया साइंटिस्ट बनना चाहिए, लेबोरेटरीज बनाने चाहिए, स्पेस रिसर्च करना चाहिए। कल ये बोल रहे थे कुछ डिस्कशन में। तो कितने बड़े मुनाफिक है ये देखिए। पैदाइश है क्या इनका, कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है पता नहीं। मतलब ये इंसान इसके खून में दोगलापन मिला हुआ है। देखिए बिल्कुल। He want to adulterate the syllabus of the science. It's according to me, a very criminal act to Yes. adulterate the pure science syllabus by some other books. Yes. It's very criminal act. एंड अनफॉर्चुनेटली इसी रीजन की वजह से तो मुस्लिम्स में इतने नोबेल लॉरिएट्स नहीं आ रहे, और जो आ रहे हैं वो अहमदी बन जाते हैं। सर मेरा सॉरी एक पैरेलल फोन आया था, तो ये डिस्कशन उस पे चल रहा है क्या सर? एजुकेशन में जो इवोल्यूशन है उसको, उसके अगेंस्ट कोई थियरी देना है, ऐसे कुछ? अभी ये कह रहे थे कि बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट, बायोलॉजिस्ट, इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट, ये सब गार्बेज होता है जो स्कूल में पढ़ाया जाता है। साइंस गार्बेज है, साइंस इज गार्बेज। ये एक्चुअली सर आपने डोवर ट्रायल्स सुना है क्या? डोवर ट्रायल्स सर, ये जो डोवर ट्रायल अगर आप गूगल करोगे तो सर ये इसकी पूरी मूवमेंट है यूएस में। दे वांट टू इंट्रोड्यूस वो क्या बोलते हैं, टीच द कंट्रोवर्सी, टीच द कंट्रोवर्सी। मतलब जो थियरी ऑफ इवोल्यूशन में जो गैप्स है उसको वो एक्सप्लॉइट करते हैं, और they want to debunk the evolution and they want to present it as a new theory, जिसे सर इंटेलिजेंट डिजाइन आपने शायद सुना होगा। तो they want to introduce this intelligent design। यस इसी पे सर डोवर ट्रायल्स हुए थे आई थिंक 2009 में, एंड फॉर्चुनेटली दे लॉस्ट दिस ट्रायल सर, बिकॉज उनके पास कोई एविडेंस ही नहीं था। दे वांटेड टू प्रमोट दिस सूडो साइंस कॉल्ड दिस ये इंटेलिजेंट डिजाइन, और ये कंप्लीटली सुपरनैचुरल पे था सर। ये थियरी वाज बेस्ड ऑन सुपरनैचुरल, एंड दे वांटेड टू लाइक मेक इट एज अ पार्ट ऑफ द साइंस। हाँ, एंशिएंट एलियन सीरीज जो है नेट की, परफेक्ट एग्जांपल। हिस्ट्री चैनल। Do you know ancient aliens? मैं दर्शकों को भी बता दूं, ancient aliens के जैसा बहुत कुछ मिलता जुलता अपने YouTube पे एक इंडियन चैनल भी है। It has 1 million plus subscribers. You know? प्रवीण मोहन? Yes, he is our Indian ancient aliens. He's our very own ancient aliens. There's also this thing what you call Aryan cult बोल के है, जो मानते हैं एक्चुअली कि मैं बताता हूँ सर, मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ। आप लोगों में से इंडियंस जितने भी यहाँ पर हैं, उनमें से कितनों को ये बात पता है
कि इंडिया के राजस्थान वगैरह, यूपी वगैरह इलाकों में, नॉर्दर्न इंडियाज में स्टोन की आर्टवर्क जालीदार बहुत अच्छी बनती है, खिड़कियां बनाई जाती थी पुराने समय में, और ऐसी कारीगरी होती थी कि आर पार आप देख सकते हैं स्टोन की कार्विंग के, और आप हाथ भी रख सकते हैं, राइट? बिल्कुल इस बिल्कुल, करेक्ट कारीगरी में बहुत नंबर वन करेक्ट है राजस्थान इस का। तरह के कई मॉन्यूमेंट्स, हवा महल, जयपुर वगैरह से लेके आपको आसानी से आज भी बनती हैं ऐसी खिड़कियां मार्बल की, यस ठीक है? यस ठीक है। तो अब उन्होंने एक नया एपिसोड रिलीज किया हमारे अपने एंशिएंट एलियन साहब ने, और वो उन्होंने एक मंदिर के बारे में बताया जहां पे एक स्कल्पचर कार्व है। उन्होंने कहा कि ये पिलर रोटेट करता था, इसके अंदर स्टोन बॉल बेरिंग्स थे। तो आई वाज वेरी, मैंने कहा चलो भाई देखूं क्या है। फिर उन्होंने कहा 300 साल पहले ये रोटेट करना बंद हो गया। मैंने कहा ये रहा एंशिएंट एलियंस, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मंदिर की उस पिलर पे कार्विंग्स दिखाई, जो कार्विंग्स पेपर थिन थी, रॉक कार्विंग्स, जिसके आर पार आप हाथ निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके उन्होंने उसको दिखाया और कहा कि ये इसलिए बनाया गया कि ये एक हैंडल है जिसको दोनों हाथों से पकड़ के इस पिलर को गोल घुमा दिया जा सकता है, ठीक है। अब ये वीडियो जो है 1 दिन पुराना है, इस वीडियो पे 5 लाख व्यूज हैं, and our very own ancient aliens, he must have earned at least $1,000 in ad revenue. वाह So this is the level of stupidity that people are doing right here. सर अगर आप ये टाइम भी है देख तो सकते मैं हैं, प्रवीण मोहन की डेविल्स स्टुपिडिटी एडवोकेट, बताऊंगा सर। नहीं, मैं डेविल्स एडवोकेट एक कुछ बोल बात रहे हैं बदल इनके बारे जाएगी। में। मैंने एक छोटा एग्जांपल इसलिए दिया, बात बदल जाएगी बिकॉज इनकी एक बेसिक एजम्पशन होती है। मैं बताऊं क्या, कि हमसे पहले जो लोग थे ना, वो इतने बुद्धू थे कि वो कुछ नहीं बना सकते थे। जो भी बनाया गया वो ऊपर से किसी ने आकर के दिया। दे डोंट एक्सेप्ट कि पीपल आज से 1 लाख साल पहले जो लोग थे वो भी अक्लमंद थे, ये वो यस मानने को तैयार नहीं है। ये यस दैट इज यस देयर बेसिक प्रॉब्लम, दैट इज देयर बेसिक प्रॉब्लम। दे दे एक्चुअली वोंट कॉल देम अंडरस्टैंड। बारबेरिक यस, एंड क्रूएल, ऐसे ये रिप्रेजेंट करते प्रॉब्लम, हैं। ये प्रॉब्लम, एबोरिजिन्स ऑफ इंडिया आल्सो यस। इनको ये बोलते हैं कि दे वर बारबेरिक, और ये भूल जाते हैं कि उन्होंने इन्हीं लोगों ने मोहनजोदड़ो जैसे सिटीज बनाई। आप क्यों इस चीज को डिनाई कर रहे हैं कि अगर रोटेटिंग स्टोन पिलर्स है या स्टोन वॉल है तो वो पुराने लोग नहीं बना सकते थे? क्यों आप इस चीज को डिनाई कर रहे हैं? आप जाओ स्टोनहेंज देख लो। आप यहाँ एक पिलर दिखा रहे हो जिसका वजन कुछ टन होगा, स्टोनहेंज के पत्थर देख लो जाके, अब बताओ कि उसको उठा के ऊपर किसने रखा? ठीक है, तो ये हमारे अपने एंशिएंट एलियन है। राज सर, उसमें और एक चीज है, स्टोनेज के पत्थर में लॉक एंड की मैकेनिज्म है सर। यस, लाइक वहां पे इतना हिंज इतना बढ़िया मैकेनिज्म है, दे वर people नॉट फूल्स। were always, just accept it, people were always intelligent. मान लीजिए जिस वक्त जो चीज अवेलेबल थी उस वक्त जो बेस्ट पॉसिबल इंटेलिजेंस था लोगों ने इस्तेमाल किया, दैट्स इट। काम आसान हो जाएगा, ना आपको एलियंस ढूंढने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में जो गॉड है जिसने बनाया अपने हाथ से ये ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। जस्ट ओपन योर माइंड अ लिटिल बिट एंड एक्सेप्ट कि आपके पहले जो आए थे वो भी थोड़े अक्लमंद थे। क्या जाता है भाई मानने में? वंडरफुली पेन डाउन सर, नाइस। अकीदा जाता है। जी चलिए आगे चलते हैं सर। Public schools. So what can we do to teach them the right things in our Islamic schools? Father, You mean other than teach them the nusus? I mean, obviously, when we teach them nusus, so they're in the alim course or they're in Islamic studies program. But when we teach them books in biology or science, they're learning the same stuff. I mean, do we have Muslims who are writing books from the Islamic perspective? Because the teacher is compelled to teach what's written in the book. Unless if the teacher himself is a scholar, then he can give counter narrative, counter evidence. That's a different case. But usually, the teachers they already believe in evolution in most cases. Yeah, I think we need to look very carefully at what the Quran says.
about natural phenomenon and see how we can infuse Tawheed into our discussions. At the macro level, the kuffar. सर मुफ्ती साहब जो बड़े चचा जान है, इनको खुजली की बीमारी है क्या? पूरे वीडियो में जगह जगह खुजला रहे हैं, अभी टांग उठा के खुजला रहे हैं। जी सर, जी Of Arabia dermatologist. actually believe that there is a macro God, right? وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. So at the macro level, they believe that God does exist and there is a higher God and so on. Their problem in shirk was at the micro level. They could not understand how one being can do everything at the same time without losing any energy or anything else. So that was the challenge for the Prophet ﷺ, that he came and established Tawheed, that all powers, all forms of energy, they are with one being. So if you can infuse that doctrine into your teaching, that Allah is in every realm, He's Rabbul Alameen, that will be the macro theory, that He makes tarbiyah of every alam. So if you have the alam of insan, the alam of jinn, alam of malaika, alam of the arwah, alam of the amthal or whatever. सर आलम ऑफ द घोड़ा, आलम ऑफ द गधा, आलम ऑफ द खरगोश नहीं बताया। जी सर, बिल्कुल। आलम of the There is out coronavirus. Okay, that he is now in control of the rules and regulations of that realm. Okay, so Can we say some multiverse theory? You can if you're Sufi. If you're into tasawwuf, bismillah, and good luck with that. Okay. But there are multi-universes. There's no doubt that we do have many universes, and obviously, look at the Quran. The Quran tells us, أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. So Allah ties this phenomenon with Iman. In the beginning, don't the kuffar see this? And at the end, he says, don't they believe? So all of this phenomenon is attached to Tawheed. जी, कुरान में बहुत साहब ने बताया, बहुत खूबसूरती से बता दिया कि जो डिसबिलीवर्स है, क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने ज़मीन आसमान फाड़ के अलग-अलग कर दिया। वाह, वाह, यही प्रूफ है इनका, यही प्रूफ है सर। जयंत रथ सर, प्लीज। हाँ जी सर, आपका कमेंट। नहीं, जमीन जो है अभी भी तो आसमान में ही है। अर्थ इज इन द स्पेस नाउ आल्सो, तो अलग कहाँ से हुआ? इनका प्रूफ देख लीजिए। नहीं, अभी भी तो अर्थ आसमान में ही है, स्पेस में ही है। अलग कहाँ हुआ, कब हुआ? अच्छे से नहीं हुआ। अच्छा, और जब बिग बैंग से इन्होंने इसको जोड़ दिया, और बिग बैंग जब था, इसका मतलब जो अनबिलीवर डिसबिलीवर कुफार थे, इजराइल जब थे, ज्यूज थे, हिंदूज थे, वो उस वक्त बिग बैंग के वक्त थे जी, तभी वो देख रहे थे, तब वो देख रहे थे। अच्छा, वो उनका ये प्रॉब्लम है कि माने वो उनकी कहना है कि वो एक खुदा तो ठीक है, वो कर सकता है खुद ही, माने ओमनी पोटेंट है, लेकिन जो बाकी कुफार हैं वो उनके पास सबऑर्डिनेट गॉड भी है नीचे, छोटा है। तो वो कह रहे हैं कि हम सबऑर्डिनेट गॉड की तो अपोज कर रहे हैं, एक गॉड की ही कैपेबिलिटी है, वो सब कर सकता है। तो हम तो ऐसे पोजीशन में है कि हमें तो ना ये छोटा गॉड दिख रहा है, ना बड़ा जो बड़ा वाला है वो दिख रहा है। चाहे कोई भी प्रोसेस हो, चाहे बच्चा पैदा करना हो, चाहे फोटोसिंथेसिस करना हो, गॉड इज नोवेयर, कहीं भी हमें दिख नहीं रहा है कि करता हुआ। ना सुबह उठ के देख लो, चाहे जंगल में, चाहे कहीं। मान लो कोई है तो उसको ये भी तो ओनरशिप लेना पड़ेगा ना, जितने सारे पोल्यूशन है, गंदा नाला है, पोटी, वो भी तो गॉड ने बनाएगा ना। वो भी सब गॉड ने बनाना है, क्योंकि गॉड की अलावा तो और कोई नहीं बना सकता ना। मतलब इसकी दलील देखिए, और कितने कॉन्फिडेंस से खुजाते हुए इन्होंने दे दिया दलील जी, कि जैसा अल्लाह ने कहा कि हमने जितना भी कुछ है वो सारा कुछ जो है ये जो है वो खुदा ने बनाया है, और जो डिसबिलीवर्स वो नहीं देखते क्या? मतलब डिसबिलीवर्स बिग बैंग के वक्त थे। दिस इज हिज स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट, एंड people actually call him ustad and master and sit down and listen to this guy. उस्ताद नहीं, वस्ताद है। Just imagine. Just imagine.
अच्छा राज सर, एक क्विक कमेंट है मेरा. जी सर प्लीज, आप ही के कमेंट का वेट कर रहा हूँ, फिर आगे चलें. Suppose if they are willing to accept multiverse as a is there in the Quran, so why do we need God to explain Big Bang then? Let us accept multiverse is the reason behind Big Bang. तो प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी ना सर. Absolutely. So we don't need God then. Absolutely. सर एक तिलकधारी मोमिन आ गए सर. नहीं, मैं बताता हूँ. Ancient aliens. Praveen Mohan video on surgical knot is 100% correct. I have practiced not on patients. You are atheist, something on temple you deny. We are not denying. We are just saying what our ancient aliens, Mr. Praveen Mohan is saying. We know that it already existed. There is a proof already. ठीक है? There is nothing sensational about it. Everybody knows. एक दिन प्रवीण मोहन पर भी हम्टी डम्टी करना ही पड़ेगा इसका भी. करना ही पड़ेगा सर, लगता है. सर इफ टाइम परमिट्स ना, मैं एक प्रवीण मोहन की मस्त स्टोरी बताऊंगा. यू विल आल्सो लाइक इट. मैं एक डेडिकेटेड स्ट्रीम एट द एंड में एक स्टोरी बताना चाहता हूँ सर. हाँ. मैं 1 मिनट में कंप्लीट कर लेता हूँ सर. यस प्लीज. जो होगी वो इंडियन एंशिएंट एलियंस जो स्पेशलिस्ट हैं उनके ऊपर होगी. ठीक है. और उसमें जो है उनके जो सबसे प्रोमिनेंट स्पेसशिप थ्योरीज हैं एंशिएंट एलियंस वाले, उसको उठा करके साइंटिफिकली, ठीक है, पूरी तरह से अच्छी तरह से डिबंक किया जाएगा. ठीक है. मैं वही कहता हूँ यार, प्लीज एक्सेप्ट इट कि लोग थे उस वक्त भी. सर्जिकल नॉट्स की बात जो बता रहे हैं उस वक्त लोगों को पता थी. जस्ट एक्सेप्ट इट यार. दिस इज नथिंग सेंसेशनल अबाउट इट. नथिंग सेंसेशनल अबाउट इट. चलिए, गंगाधर प्रसाद जी का कोई कमेंट आया है. वो कहना चाहते हैं कल वाजिदी के चैनल पर आजाद ग्राउंड जाने क्या बकवास कर रहे थे, पर बाद में जो यादव साहब आए थे उनके सवाल. सर मुझे तो नहीं पता, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन अगर आप लोगों ने देखा तो इस चीज को आप खुद बेहतर समझ सकते होंगे, ऑडियंस जो हमारे साथ हैं, कि अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं है हमारे पास. वो तो वैसे भी हम कुछ नहीं. क्या क्यों कहो राम सर? Because on जी this सर, topic, कुछ उस पर I don't think so there is anything to say on this topic. there's nothing left. There's nothing left to say. People are better judge. भाई हमने तो जब अलग हुए थे हमने बोला कि हम हमारे कंटेंट पर काम करेंगे, and that is what exactly we are doing. We have 3 experts sitting here. Absolutely. So they are working. May I take this chance to introduce our new website, sir? Audience अभी हमारे पास आ गए हैं काफी. जी सर, मैं समझता हूँ कि अगर हम वीडियो खत्म करके बोले तो ठीक रहेगा, क्योंकि हम पहले खत्म कर देते हैं. ठीक है. टेक अ लॉट ऑफ टाइम देन वेबसाइट के इंट्रोडक्शन में. ऑलरेडी 1 आवर होने को आ रहा है. ठीक है सर, लेट्स मूव फॉरवर्ड. That this must be part of your iman, that this is the way the universe is made and this is the way the universe created. So whether it's before time, so the Quran speaks about how the universe created, and the Quran speaks about how the universe will be destroyed, and then the Quran speaks about other worlds after this world. Okay, so if you infuse Tawheed, the point is, how do human beings know what's outside of time and space? That's where wahi comes in. Okay. Speaking of multiverse, actually, Shah Waliullah Muhaddis talks about alamul misal. So when the scientists talk about multiverse, they're actually talking about parallel universe. So Shah Sahib Rahimahullah's discourse in Hujjatullah, when he talks about जैन सर या पेनिशिया सर, एक मिनट का कमेंट आपसे चाहूंगा. पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स क्या दोनों एक ही होते हैं? ये तो एक 1 लाइन में दोनों चीजें बताए गए हैं. मतलब पैरेलल यूनिवर्स, मल्टीवर्स, और वो भी अभी मैंने साइंटिस्ट ही कंसीव नहीं किए और ये अपना कुरान से निकालने शुरू कर दिए. मतलब एडवांस निकालने शुरू कर दिए. अब डिमांड करने से पहले ही उनकी रेडी है, मेनू तैयार है. अभी तक वो प्रूफ भी नहीं हुआ पूरी तरीके से. अच्छा, बाद में कहते हैं कि these are all garbage and they are searching garbage in their own book. Searching garbage in their own book.
गार्बेज बोल रहे हैं और अपनी किताब में गार वाह सही hence proved their book contains garbage. इसको कहते हैं own goal. Own goal. बिल्कुल ये देखिए कितना अच्छा कमेंट आया पंकज जी का। आउटसाइड टाइम एंड स्पेस बिना हिचक के बोल गया। भाई भावनाओं में बह गए हैं, आप बात समझो। और खुजली का भी असर है भाई, सोचो हाँ, उनकी वो हालत। टाइम और स्पेस देखिए सर, मैं या आप टाइम और स्पेस बोलने से पहले कांपेंगे, क्योंकि हमें पता है वो क्या हम बोल रहे हैं। जिसको कुछ नहीं पता, जो चतुर रामलिंगम है, तो चमत्कार बोलेगा तो क्या फर्क पड़ता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। वेरी गुड कमेंट श्री गणेश पा बोल रहे हैं ऑल मिक्स फ्रूट जूस। बिल्कुल बिल्कुल। Alamul Misal, is he talking about a parallel universe or is it different? And can we say that, our alim, our scholar has already talked about 300 years ago? It's parallel, but it's not independent. सर पैरेलल तो है लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है। पैरेलल का मतलब ही है कि इंडिपेंडेंट है, अलग। एवरीथिंग हैपेंस डिफरेंटली, इजंट इट? Correct. He must be a Neanderthal in parallel universe. I thereby certify him that Actually, you are. according to their view, only this universe means which we are residing has only one Earth, one planet, that is Earth, and another parallel universe is there to balance if any problem happens to in this primary universe. उनकी ये कहना है कि इस हमारी यूनिवर्स में अकेला यही अर्थ है, और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो पैरेलल यूनिवर्स इसको बैलेंस करने के लिए है, बस सेवा के लिए है। चलिए आगे चलते हैं। मतलब बैलेंस के लिए, मतलब अगर समझो बाय मिस्टेक अगर हिटलर सरवाइव हो गया, नाजीज्म हैज ट्रायम्फ, तो पैरेलल यूनिवर्स आके बचाएगा हमको। यही कह रहे हैं। Oh my goodness. Oh my, this is a very good script for my new stand-up comedy के लिए। Thank you sir. इस पे तो सर एंशिएंट एलियन स्पेसशिप थ्योरी का एक नया एपिसोड बन सकता है। सर इससे तो ज्यादा और क्या होगा, एंशिएंट प्रवीण मोहन प्लस मुफ्ती वाजिदी सर, जस्ट थिंक ऑफ हमारे बच्चे हमारे बारे में बात करेंगे कि देखो कैसे कैसे लोग थे हमारे डैडी के जमाने में। Meaning this world is attached to that world with a sort of a kind of complementary role. Okay, this is like the Aristotelian Platonian theory of the images. Okay. So that's a different issue. But what I'm saying is that we must understand Allah. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. It's a huge verse for us to understand. He creates what you don't know, meaning your knowledge is limited to this world. And even in this world, we don't know everything. I'm sure there are hundreds and thousands of species we haven't discovered yet. Every time I read National Geographic, they find other species, which they never knew about, right? So I mean, our knowledge is limited. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ is where we need to train our students to think that Allah is the creator and his creativity is limitless and it's perpetual and it's continuous and it's eternal, all of that good stuff. So I think if you infuse Tawheed into the thinking of the teachers first, in the philosophy of the school, and then into the students, and then, as you say, maybe we should write books too. Inshallah. There is another question. It's also related to scientism, and this question is, in fact, both of you, but let me ask Brother Daniel first. There are many psychologists, I'm talking about Muslim psychologists, who assert their authority on many various different issues over traditional sciences or imams and scholars. One of those famous issues is gender identity or gender fluidity. In fact, a few years ago, a few of my students called a center and they spoke to a psychiatrist there and they asked this question. So he said, yeah, I mean, gender fluidity is a fact and we have to accept it. And I'm talking about, again, a Muslim psychiatrist, Muslim psychologist. So
isn't that scientism? And are we not going or making science authority over the Quran, where Quran is very clear that Allah subhanahu wa ta'ala created you as men and women? And then we start promoting gender fluidity, where you can assign as whatever gender you like out of 80 plus genders. So what do you think? This behavior, is it acceptable or not? What behavior? The behavior by psychiatrists. Science tells us that gender fluidity. I'm very sorry. Science does not say that gender fluidity is a fact, especially in humans. Gender fluidity is a fact in many species, but not found in humans. Humans who say gender fluidity is a fact are stupid people. Jain sir, please. Gender in human and in some higher species, there is gender crystality, and there is no gender fluidity. We cannot change one gender to another by simple changing some of the things. It is very crystallized on the basis of a gene, on the basis of chromosome, and after that it is the hormonal aspect and the physiological aspect. There are chromosomal and genetic abnormality happens, but that is the different thing. But we have gender crystality, not fluidity. But in other animals, there are not only two genders present, because there are fluidity in some cases. Yes, in some types of fishes and worms, in lower animals, in higher animals also we find these cases. But in humans, there are bisexual organisms also. One body contains both male and female gametes, like earthworm, tapeworm, and some plants, like many plants are bisexual. A flower contains anther and stigma as well. That means bisexuality are there in a bunch of the organisms. Only higher ones are sexually separated. और दूसरे बात ये है कि जो जब इवोल्यूशन हुई फ्लावर में भी, प्लांट्स में जब फ्लावर की ओरिजिन हुई, इनिशियली कुछ फ्लावर्स ऐसे आए जो इनफर्टाइल थे. हम भी अभी देखते हैं मोस्ट ऑफ द ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, दे फ्लावर्स बट दे डोंट गिव एनी फ्रूट एंड सीड. यस, एग्जैक्टली. दैट मींस इवोल्यूशन एक झटके से नहीं होती है. देयर आर कनेक्टिंग इंटरमीडिएट स्टेजेस. इंटरमीडिएट स्टेजेस में कई बार इंटरमीडिएट जेंडर भी, सेक्स भी आ जाती हैं. तो ऐसे कई दूसरे एनिमल्स में भी देखने को मिलती हैं. They contain some of the both of the sexual characters, but neither of the characters is actually perfectly physiologically at that par maturity present in one body. If it is present, it is called as a bisexuality, bisexual conditions. So there are bisexual conditions. There are without actual sex organ, only sexual characters may be present in one body, which is not actually fertile in nature. They are also present, and sex separated. They are also present. All these conditions are present in the living system. Thank you, sir. Phanisha ji, आपका कोई comment, sir? नहीं सर, I think sir ने properly elaborate कर ही दिया था. Okay, sir. Let's move forward. Whereas you guys, you tell us, give us a different story. So what do you say about it, this behavior? Well, I might shock you and say it's acceptable. No. So the question about psychiatry and psychology, this is also extremely dhanni. And when I am talking about scientific revolutions, I mentioned the laws of motion and the laws of gravitation. That's considered hard science, and yet it is going through revolutions and changing. Psychology and sociology, they are at best soft sciences, at best, and very highly speculative. Sometimes, there'll just be one or two papers that will be published, and suddenly the entire practice of psychology will change. And it's highly politicized as well. It's very, very highly politicized subject. So I think that there is a danger for Muslims to put psychology, especially in modern psychology, because this is an ideology. Even though they have put the label of science on it, it is an ideology that's highly influenced by atheism. It's highly influenced by scientism, and it's highly influenced by liberalism, which you've mentioned, Mufti Asar, at the beginning, as one of the sources of doubt that
Muslims and people in general are facing. So I think that Muslims need to be very careful and not allow psychiatry or psychology as the study of the human mind to dominate any Muslim discourse. So basically पिकाचू सर का सॉल्यूशन वही है जो यासिर साहब का है, कान बंद कर लो, सुनो मत, don't listen. मतलब they don't have any explanation. इनका यही solution है कि don't allow these people or these science things to come into your mind. Keep your mind focused on Quran. This is the best that they can master. तो इतनी बात करने की जरूरत क्या थी सर? शुरू में कह देते भाई ईमान रखो, हौसला रखो, हौसला रखो, वो सब बकवास करते हैं। बस ईमान पर रखो, साइंस पढ़ो भी मत, साइंस की डिग्री भी मत लो, डॉक्टर मत बनो, इंजीनियर मत बनो, कुछ मत बनो, सोशियोलॉजी मत पढ़ो, साइकोलॉजी, साइकाइट्री कुछ मत पढ़ो। तो फिर इस मामले में तो सीधे अब रियासत मदीना ही बनेगा सर, 1400 साल पुराना। बस जी सर, साइकेट्रिस्ट को प्रोहिबिशन है, इब्लिस और सैटन जा सकते हैं माइंड तक, साइकेट्रिस्ट को प्रोहिबिशन है, वो नहीं जाना चाहिए, नॉलेज नहीं जाना चाहिए। इब्लिस एंड अदर सैटन्स दे कैन गो, फॉर देम साइकोलॉजी एग्जिस्ट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। मैं समझता हूँ साइकाइट्री और साइकोलॉजी अपना लिबास बदल के इब्लिस बन जाना चाहिए। तो फिर शायद इनको समझ में आएगा कि हाँ भाई ओके, रीजन इज एंटर्ड। थैंक यू, लेट्स मूव फॉरवर्ड प्लीज। And Muslim understanding of the nafs. Okay, what does we have ilm nafs as well? We know that the human being is a creation of Allah with the ruh. Sir, the statement that we know that human being is the creation of Allah. How do you know? He has no explanation. Jain sir, your comments. Sir, मैंने आपकी एक्सपेरिमेंट और थ्योरीज में मान लो 2% कुछ मिसिंग लिंक है, प्रॉब्लम मैंने डाटा की डेफिशिएंसी है, देन एक्सेप्ट माय 100% बुलशिट। यस, थैंक यू वेरी मच सर, एक लाइन में समराइज कर दिया। इफ योर थ्योरी हैज 1% डेफिशिएंसी देन you will have to accept 100% of my bullshit. This is his logic. That is the logic. ये बड़ा अच्छा है कि एक्सटी मैट ने कमेंट दिया है कि इस्लाम इन्वेंटेड टाइम मशीन, once you accept you go back in time and live like them. Very nice, very nice comment. Brilliant comment sir, हम लोग वेबसाइट पर डालेंगे ये। बिल्कुल, वेबसाइट से भी ये लाइव अभी चल रहा है, वेबसाइट पे भी, वेबसाइट पर भी ये लाइव चल रहा है। अगर लोग है तो मतलब मैंने पिन कर दिया वेबसाइट को, हमारी जो डिस्टोपिया टूरिज्म वेबसाइट है, वहां पर फोरम्स है, आर्टिकल्स है। तो yeah, we'll speak about it. Let's finish the video. Yeah, let's finish this. Speak with a nafs, with all of these different facets of human nature that is explained by wahi, the creator of human beings. So who better is going to know the nature of humanity, the psyche, the mind, the heart of the human being other than the creator of that mind and heart, as opposed to atheists who speculate on, oh, well, I mean, some of their beliefs, gender fluidity is just the most recent, but throughout the history of psychology, you know, people have heard of Freud, right? The founder of the Austrian founder of psychotherapy and psychoanalysis. And his understanding of religion is that religion is a kind of deviance. Religion is kind of a psychopathy. And it's human beings are, for example, naturally incestuous, edible complex. I'm not going to explain what that means, but humans are naturally incestuous, and all of these bizarre interpretations of the human mind and the human psyche. And when you see this is at the source with Sigmund Freud, then look at the branches. This is the roots. Look at the branches of what is produced. It's no wonder we have these theories of gender fluidity, sexual orientation, and all of these things that very acutely attack Islam. Not only conflict with Islam, attack Islam to such an extent that Muslims, hardly practicing Muslims, can be in a position of being a licensed therapist. You cannot be licensed, actually, because if you're a licensed therapist, if someone comes to you and says, I have, you know, these desires for the same sex,
the therapist is required to tell you, okay, well, let's see how we can help you with that. Not to get rid of those desires. Even if the patient says, I want to get rid of these desires, the therapist, in order to keep the license, has to say, cannot discourage that or say this is wrong or this is a problem. So there's this idiot has the gumption to say that Muslims, I am actually challenging Wajidi, very clearly challenging Wajidi. You have the bloody gumption to say that Muslims, don't you ever go to a psychiatrist or a psychologist from now on. Yes. Because they study Freudian, because they are very much inclined towards Freudian, Oedipus complex or Electra complex. Does he have the gumption to say that? एक फतवा निकाल के दिखाओ सर आप। और आप यूएस में बैठे हैं, एक डेवलप्ड कंट्री में बैठे हैं, आपके पास क्या ये हिम्मत है बोलने के लिए कि मुस्लिम्स कोई साइकोलॉजी साइकाइट्री नहीं पढ़ना चाहिए, एंड नोबडी शुड गो टू अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकाइट्रिस्ट। एक काम करिए, वो पीर बाबाओं का जाइए, सिफली का इल्म, जिसके पास सिफली का इल्म है ना, उनके पास जाइए, उनसे अपना इलाज करवाइए। जी जेम्स सर। मेरे कहना था कि जैसे मान लो फ्रॉयड, इट स्टार्टेड फ्रॉम फ्रॉयड इज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस, बट क्या वो है तो बाकी साइकोलॉजिस्ट जो है वो खाली फ्रॉयड का ही चीजों को ही एक्सटेंड कर रहे हैं? देयर आर नहीं सर, डिफरेंट साइको एनालिसिस, सर साइको एनालिसिस की बात होने से पहले चुड़ैल बोल करके जिंदा जला देते थे, ठीक है सर? तो वो इनको चाहिए, वो इनको चाहिए। कोई मेंटल पेशेंट, बिल्कुल सही बोला आपने, कोई मेंटल पेशेंट है उसको जिंदा जला दो। अच्छा, जो वो उनके कहना है कि इफ पायनियर इज सिगमंड फ्रॉयड देन होल ब्रांचेस विल बी इंक्लूडेड, माने ओवर पावर्ड बाय द सेम फ्रॉयडियन रिसर्च। ऐसा तो नहीं है, डिफरेंट रिसर्चर आर डिफरेंट थिंग, माने हमारी बट फ्रॉयड का भी बात जो है वो बाय दैट लॉजिक, वो भी लॉजिक जी सर, बाय दैट लॉजिक मोहम्मद साहब वाज द फाउंडर ऑफ इस्लाम, लेकिन अभी तो मेजॉरिटी और इस्लाम को कंट्रोल सुन्नीस करते हैं। अब बताइए। नहीं, साइंस में भी मान लो सर, जी साइंस में भी मान लो देखें तो अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, बट नाउ the things has been evolved to different away from the Aristotelian concept. Aristotle is the father of biology, father of geology and father of शायद economics etc और भी फील्ड के हैं, बट आज की डेट में तो उनकी कोई वो नहीं है जो पायनियर है उनकी। और फ्रॉयड का क्या सच्चाई नहीं है उनकी इन्वेस्टिगेशन का? क्या ये जो गॉड बिलीवर, खाली मैं इस्लामिक बात नहीं कर रहा हूँ ताकि वो किसी को पॉइंट आउट ना करे, ये क्या अपने स्कूल में क्या कर रहे हैं? फ्रॉयड को ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, या अपने मदरसे में फ्रॉयड का ही काम को प्रोपेगेट कर रहे हैं? और क्या क्या कर रहे हैं? ये डैनियल दरअसल जी, ये डैनियल दरअसल वाजिदी को पर्सनल क्वेश्चन पूछ दिया है अपने घर के बारे में। Exactly. He is very much into Freud actually. He is very much a living example of Freud. वाजिदी के मामा भी कुछ जरा फ्रॉइडियन ही इशू हुआ है उनको भी। चलिए आगे वाजिदी के मामा जी को। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि आपने जो है इनको वापस से इस वक्त जो मुस्लिम वर्ल्ड को जो है ये विच हंटिंग के दौर में चल रही है, जो 1000 साल पहले क्रिश्चियनिटी थी। बस तो इनके पास गैजेट्स है, नए नए गैजेट्स है और इनके पास टेक्नोलॉजी है। क्रिश्चियंस के पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट दिस इज एक्चुअली अ क्रिमिनल ऑफेंस, क्योंकि आज आपके पास साइंस है, टेक्नोलॉजी है और आप जो है उसी घसी पिटी बातें और डार्क एजेस को प्रैक्टिस कर रही है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डार्क एजेस। ये वही डार्क एजेस के प्रीस्ट है, ये वही डार्क एजेस के पादरी है जो एक जमाने में विच हंटिंग का फतवा देते थे। बिल्कुल, इनमें उसमें कोई फर्क नहीं सर। कोरम सर, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, राज सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। why do these people hate empiricism? मतलब उनको evidence based proof के against ये क्यों बोलते हैं? Like most of them they argue कि rationalism is a better way of understanding than empiricism. तो उनको इतना मतलब सर इससे क्या होगा पता है आपको? अगर रैशनल एम्पिरिज्म की तरफ से जाएंगे ना तो जो नीचे ने गया उनके द गॉड विल बी डेड। There is no proof of God.
Absolutely. That is their conclusion. In the end, वही मिलेगा उनको. Yes. Yes, Raj sir, please go ahead. If your very existence, if your very Hmm, hmm, existence hmm, cannot be proved, then how would you hmm. go around preaching others? Yes. इनकी खुद की ही तो बेसिस बिलीफ पे है ना, तो ये तो चाहेंगे कि सब Hmm, कुछ बिलीफ के बेसिस पे हो. hmm, आगे चलते hmm. हैं सर. Yes, sir. So how can we reconcile that with Islam? There's really difficulty in that. Yeah, so we understand that many psychiatric, in fact, any psychiatric who would go against this will lose his license. But what's wrong with the aima and the scholars? How come they're not speaking on these issues? I find very few scholars who would have actually talk about transgenderism and gender fluidity. Some scholars, in fact, started justifying this problem. But what's stopping us? What's stopping the ulama fraternity to speak up on this issue? We're not licensed. Still, we have fear. We're not licensed. We'll be sued. What's stopping us? Nothing. I think there are some people in the Ummah who do speak out against this from the podium in Jumas and so on. I think it needs to be taken very seriously. Sometimes we overlook sin and assume it's just a sin, is a guna, and get over it and so on. But we do need to understand that these kind of deviances, aberrations, they need to be treated maybe sometimes through a process, sometimes through rehabilitation, sometimes through some kind of family support and so on. And sometimes it could be just telling them it's just flat wrong. So they're going to be, it depends on the patient, right? How severe is this inclination, how severe is the desire, and so on. As far as your question, what's stopping the Aimma? The Aimma here in the USA, unfortunately, they're already bombarded with everything that kufr has to offer. Okay, so the question of which poison are you going to talk about today? Okay, so if there are 52 poisons out there, then you're going to speak about one in one Juma, right? So it's a question. Plus, I think they can speak only after the permission of Sahib Usmuf, the board. That's another pressure on us. But for people like us, I think we do speak about it in open. So there are some who do speak out. Okay, so maybe there should be a committee of ulama who just focus on these aberrations and so on. But the thing, I think, instead of reacting to this, we should have, as you're suggesting, maybe a systematic curriculum where we can implement that curriculum in Muslim schools, in the masjid, ask people to come and attend these classes, not lectures, classes, organized, structured classes where we take them from the nusus to the usul to the furu and have all of this organized in a very structured way. That'll be one possible solution, inshallah. Okay, this leads us to our last question, and I think it's very important for myself as well as, inshallah, the audience. We see on social media, especially from the time when Dr. Zakir Naik was very active, in the Arab world, there was a scholar, his name is Dr. Zaghlul al-Najjar, who has produced many books. It's about the scientific interpretation of the Quran. So as soon as an ayah comes and suppose it indicates to a scientific phenomenon or scientific theory, they say, look, Quran has told us about this scientific theory 1400 years ago. And for instance, when it comes to the Big Bang Theory, they say, there's ayah Surah Anbiya that you mentioned, كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. Oh, the Quran talked about the Big Bang 1400 years ago. When it comes to iron coming from the space, they say, وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. Quran has already talked about it. Or when it comes to expansion of the universe, they say, وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ is in the Quran. So how far can we go? Do you think that scientific interpretation, and as we just learned, that scientific theories tend to change. So today we have one theory that is accepted by all. Tomorrow, after 100 years, 200 years, who knows, it might change. So how far can we go with this scientific interpretation? Should we just reject it completely or accommodate it to an extent? Yes, to you, inshallah. First.
Yeah, I think that's kind of a young boy finding candy and saying, I'm the king of the world, basically. I mean, it's kind of ridiculous. The Quran basically is a book of guidance, hada huda. So any scientific fact which may be there is part of the overall hidayah that the Quran wants you to appreciate and understand that Allah is the one who's doing this. Now, if the facts of creation are aligned with what Allah subhanahu wa ta'ala is saying, then so be it. But there will be many theories that may change. So what happens when this theory of the Big Bang changes in 10 years? What you going to do? Okay. So you're kind of stuck in no man's land, basically. So Qari Tayyib Sahib rahimahullah used to say that the Quran is not a book of science, it's a book of guidance, it's a book of hidayat, and so on. Can it help some people believe the Quran is a book of Allah? Yeah, sure. Everything's possible. Allah can guide you through. ऑटोमेटेड कैप्शंस में नहीं, मगर अभी जो है इनकी आवाज जो है थोड़ी जरा वो क्या बोलते हैं साइंस को लेकर थोड़ा जरा ये कॉशन रख रहे हैं कि भाई मत बोल दो, ऐसा बेकार की बात है, लोगों का मजाक उड़ाएगा आपका, ये बोलना चाह रहे हैं। अगर आप पूरा अगर देखेंगे तो अभी ये डर देखिए, गए असल में। पहला क्लेम क्या रहता है कि साइंस में जो भी थियरी है वो कुरान में मौजूद है। इसकी पहली स्ट्रीम में हम लोगों ने देखा था जो उन्होंने ह्यूमन चाइल्ड प्रोजेनी के बारे में पूरा एकदम इस कुरान से कहा था। तो ये तो बात बहुत मजेदार सच में है। जो सवाल इन्होंने पूछा कि अगर 10 साल बाद थियरी चेंज हो जाएगी फिर आप कहाँ चले जाएंगे? तो ये इसीलिए कहते हैं, अब इनको स्टांस इन्होंने चेंज कर लिया कि कुरान इज नॉट अ बुक ऑफ साइंस, इट्स अ बुक ऑफ हिदायत, गाइडेंस। और जितनी भी चेंज होके थियरी होगी हम वापस उसमें से ढूंढ लेंगे कुरान से आकर के। मतलब एनीथिंग दैट विल बी डिस्कवर्ड वो पहले से है। जय हो हम्प्टी डम्प्टी। जय सर, यही हम्प्टी डम्प्टी है सर, यही है। हम जो है हम्प्टी डम्प्टी क्या बोल रहे हैं हम लोग? हम्प्टी डम्प्टी अभी हम बैठ के अगर पूरे नर्सरी राइम्स भी पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी साइंस मिल जाएगी उसमें, और उसको सर्टिफाई करने के लिए पेनिसिया और जयंत जी भी चाहते हैं। एब्सोल्युटली सर पूरा स्ट्रीम में साइंस निकालते रहे, लास्ट में आके क्या कर दिए सर? ये देखिए लास्ट मतलब लास्ट में आके ये गड़बड़ कर दी सर। ये तो हमें हमारी खामखा मेहनत करवा दी। ये पहले चलवा देते ना, इसको लास्ट वाला पार्ट पहले चला देते। ये लास्ट में खुद और वो सूर्य अंबिया की अगर आप डालेंगे ना सर, सूर्य अंबिया में फाड़ा है, वो फाड़ने का दिया है, टेयरिंग, इट शोज अ टेयरिंग, बट दैट इज नॉट बिग बैंग, यू इडियट। द बिग बैंग एक्सपैंडिंग, फाड़ना और एक्सपैंड करना तो अलग अलग चीजें। सब तो वो बकवासी जितनी भी उन्होंने अभी आयतें बताई, इससे पहले हम लोग कई बार इसकी पोस्टमार्टम कर चुके हैं सर। सब पोस्टमार्टम कर चुके हैं, बकवास बात है। मगर आखिर में फिर वो हो गए। आखिर में इनका यही मानना था, आखिर में इनका यही कहना है कि इसको साइंस मत मानो, इसको साइंस मत मानो, फंस जाओगे। मैं अपने ऑडियंस को बोलूंगा यार, इसके ऊपर प्लीज मीम्स बना के भेजाए कोई, अगर अच्छी क्रिएटिव है तो। राज तो बना देंगे इस पर, हम्प्टी डम्प्टी पर। हमारा असल जो है हम्प्टी डम्प्टी के 3 सीरीज हो चुके हैं, हमारे तीसरे अभी कंप्लीशन पर है, और हम चाहते हैं कि ऐसे और सीरीज करेंगे कुरान और हम्प्टी डम्प्टी साइंस पर, के ताकि जितने भी ये जो साइंटिफिक क्लेम्स है ना, इसके ऑपोजिट में हम्प्टी डम्प्टी के करना जरूरी है। सर एक बहुत बड़ा ये माने पागल बुल था, वो आके पूरा एकदम गांव के बाहर ना मिट्टी पूरा निकाल के इधर उधर एकदम हल्ला मचा रहा था। सब उसको पूछ रहे थे तो ऐसा क्या कर रहा है? तो बोला मैं सभी जानवर से लड़ूंगा, अब सभी से लड़ूंगा। तो उसके पीछे की तरफ जाके देखे तो लूज मोशन लगा हुआ था। उसको बोला कि तो फिर ये क्या हो रहा है? बोला डर बहुत लग रहा है। साइंस निकालना भी है लेकिन डर बहुत लग रहा है, मतलब कहीं पंगा ना। सही है सर। आपको याद है परवेज हुडबॉय और सॉर्सॉइस की एक डिबेट हुई थी पाकिस्तान में, और सर उसके बाद में सर ये जो IRA है उसने क्लियर कट बताया था कि वी आर नॉट गोइंग टू डिबंक साइंस एनीमोर। सॉर्सॉइस ने वो किया था
कि हम लोग साइंस को डिबंक नहीं करेंगे, और वहां से उन्होंने लाइन चलाई थी कि कुरान इज नॉट बुक ऑफ साइंस, इट इज अ बुक ऑफ साइंस। हमजा टॉर्टरेज वो हमजा के साथ जो हुआ था। जी जी सर। यस यस, हमजा टॉर्टरेज। कोहराम सर, मुझे लगता है कि यहाँ भी तो लेकिन मुफ्ती साहब और इस्लामिक अपोलॉजिस्ट साहब जितने वहां बैठे हुए थे, ये एक चीज पे एटलीस्ट कंसिस्टेंट है। जब बात आ जाती है मरने मारने की, मतलब पुश एंड शव वाली, जब दिखाना होता है तो ये भाग जाते हैं। पूरी स्ट्रीम में इन्होंने पूरी डिस्कशन दी कि कुरान है, साइंस है, ये है, वो है, लास्ट में निकल लिए बोल के कि नहीं है। साइंस की है ही नहीं। सर एडम भाई आए हैं, लिंक दे दूं क्या इनको? हाँ, अगर कुछ अगर बोलना चाहते हैं, मगर दूसरे लोग ना जुड़े, हम लोग थोड़ा वेबसाइट के बारे में भी बोलना चाहते हैं, तो क्योंकि वो स्ट्रीम तो हो गई, कर बस लेंगे। वही बकवास थी। वो 1.5 घंटे की हम्टी डम्टी हमने कर दिया है, और आगे ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मुफ्ती वाजिदी के जो है साइंस पर डिबंक करेंगे। बहुत सारे साइंटिफिक क्लेम्स है कुरान में जो बोलते हैं साइंटिफिक क्लेम्स है, पर उसको भी डिबंक करना है। और जो पनिसिया ने अभी जो बताया था कि परवेज हुड बॉय का, तो जो परवेज हुड बॉय, वो आर्गुमेंट बड़ा अच्छा था उनका कि प्लीज कम एंड सपोर्ट, प्लीज कम एंड एक्सप्लेन, जो बोला था अमेजिंग। वहां फंस गया उसने। अब कहां से भाई, चलो ठीक है, कुरान से प्रूफ करके दिखाओ ये थियरी, प्रूफ करके दिखाओ। वो कौन सी थियरी सर? तो थियरी है कुछ पता नहीं, वो क्या याद बोला, नहीं आ रहा। कभी कभी हम लोग डालेंगे, उस पर भी करेंगे हम्टी थियरी डम्टी। बट परवेज हुड बॉय इज नेक्स्ट लेवल भाई, अमेजिंग माइंड, वन ऑफ माय फेवरेट, और बहुत फैंस है उनके इंडिया में। साइंटिस्ट है ना सर वो, साइंटिस्ट है ना यार। उनका कभी आप एवोल्यूशन पर उनका देखो, कभी परवेज हुड बॉय का उर्दू में प्रोग्राम है, बहुत जबरदस्त है। और उनका एक प्रोग्राम है उनके साथ भी, जो नोबेल लॉरिएट है ना, ये क्या पाकिस्तान के जो नोबेल लॉरिएट थे, उनके साथ भी उनका प्रोग्राम है परवेज हुड बॉय का। ऐसे ऑडियंस को मैं बता दूं, दिस इज आवर वेबसाइट विथ न्यू फीचर्स। अगर ऑडियंस को नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है क्या, बताएं, थम्स अप एक दे दे। यस सर, नजर आ रहा है जी। तो दिस इज द न्यू वेबसाइट ऑफ डिस्टोपिया टू रीजन। यहाँ पर एक मिनट, मैं एक चीज को कर देता हूँ। हाँ, अब ये फुल स्क्रीन नजर आ रहा होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यू हैव एन ऑप्शन ऑफ लाइव स्ट्रीम। मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ वेबसाइट पे, तो चैनल की लाइव स्ट्रीम यहाँ ब्रॉडकास्ट हो रही है। ठीक है, as and when we are discussing it, it is appearing live. ठीक है, so this is the website. Here you can access our live streams directly through the website. इसके अलावा you have the forum. A full-fledged forum. I would request हमारे जितने भी ऑडियंस हैं, एडम भाई को भी हम कहेंगे कि ये हमारा ऑफिशियल फोरम है जो हमारी वेबसाइट पे आप जाकर के देख सकते हैं। और वेबसाइट की लिंक पिन है ऑलरेडी, तो जी देख सकते हैं। जी, तो आप वहां जाकर के हमारे फोरम में रजिस्टर हों, और फुल फ्लेजेड फोरम है। उसमें आप अपने थ्रेड्स बनाएं, लिंक्स डालें, कमेंट्स करें, मीडिया शेयर करें, मीम्स शेयर करें। ठीक है, get registered and start talking. This is your very own forum, Dystopia to Reason. Then you have the library section, which is new, where you have the atheism literature, Daqin University, atheism and agnosticism की पूरी books, सारी चीजें, किताबें जो आपको चाहिए, you can just click and it will take you to the official website of the library. सर ये पेज पर जो भी जाएंगे उनको बहुत गुस्सा आएगा ना। हाँ, हमारे पास एथिज्म का नाम लेते ही मोमिन है, हमारे दूसरे भाई लोग भी जरा बहुत गुस्से में आ जाते हैं। जी, तो मैं लाइब्रेरी में सेक्शंस एथिज्म की ऐड हो रही है, इसके नीचे आपको हिंदुइज्म की सेक्शन भी मिलेगी।
whatever resources we find we will put up. आप जो भी सबमिट करेंगे सारी put up होंगी लाइब्रेरी में, उसकी टेंशन आप मत लीजिए. Anybody and everybody is welcome to share. सर मैं एक नेचर का लिंक डालना चाहूंगा, जो कि थियरी ऑफ इवोल्यूशन नेचर जो वो है जर्नल, थियरी ऑफ इवोल्यूशन का वहां पे ना आपको रिसोर्सेस मिलेंगे, तो वो मैं आपसे शेयर करूंगा सर. इफ पॉसिबल प्लीज इस लाइब्रेरी में डाल दीजिए. हाँ श्योर. देखिए whatever you want to share, पहले आप फोरम में जाएं. मैं आपको बता देता हूँ ऑडियंसेस को भी, आप फोरम में जाएं, रजिस्टर हो जाएं, वहां एक ओपन करें थ्रेड, न्यू टॉपिक क्रिएट करें, वहां अपने कंटेंट को पोस्ट करें, क्वेश्चन को पोस्ट करें, और ऑटोमेटिकली वो सारी की सारी वेबसाइट पे आपको नजर आएंगी. उसकी लिंक भी आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी आप इनवाइट करें फोरम ज्वाइन करने के लिए. आई थिंक मैं थोड़ा 2 मिनट का टाइम लूंगा सर. यहाँ पे कुछ चैट में पीपल आर अननेसेसरी अब्यूजिंग एडम सीकर. हु आर दे? I don't know, Mr. Ajay Singh, who seems to be a Momin, who's coming up with wrong name, and you have to understand ये कौन से ग्राउंड से आते हैं ट्रोल करने, ट्रोलिंग ग्राउंड से आते हैं ये. तो आई रिक्वेस्ट, अगर आप अभी कुछ भी अगर अगेंस्ट बोलेंगे उसके, तो आई विल सीधा टाइम आउट कर दूंगा मैं. ऐसा नहीं है कि एडम के आइडियोलॉजी से मैं भी एग्री नहीं करता, ना वो मेरी आइडियोलॉजी से एग्री करता. एंड द सेम अप्लाइज टू इवन अपोस्टेट इमाम, कि मैं उसकी आइडियोलॉजी से नहीं, वो भी मेरी आइडियोलॉजी से एग्री नहीं करता होगा. बट द थिंग इज कि जब यहाँ पे है, आप जरा अदब से पेश आए. बिल्कुल. डोंट ट्रोल पीपल. और वो आके अच्छे सेशन लेता है, उसकी काफी अच्छी नॉलेज है इस्लाम पर. बिल्कुल. Absolutely. So this is our new website. It's still being upgraded, but much of it is live now. आप users जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, सबको रिक्वेस्ट है कि आप वेबसाइट पे जाएं, वहां जाके फोरम सेक्शन पे जाएं, जाकर के आप रजिस्टर हों, अपनी थ्रेड्स करें, अपनी बात रखें, ब्लॉग्स लिखें, जो भी मर्जी आए करें, चैट ग्रुप्स बनाएं, बातें करें, मीडिया शेयर करें, और जो कुछ भी है वो सारे का सारा आपकी वेबसाइट पे डिस्टोपिया टू रीजन पे लाइव होगा. फेसबुक शेयरिंग, ट्विटर शेयरिंग, एवरीथिंग इज अवेलेबल. जी, थैंक यू वेरी मच. हाँ जी सर, मैं कहना चाह रहा हूँ, पनासिया जी है ना सर, डॉक्टर साहब हैं, पनासिया जी? यस सर. जी. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि व्यूअर्स के लिए भी, कि हम इवोल्यूशन पे, जैसे आप कह रहे थे कि पूरी सीरीज करेंगे, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इवोल्यूशन की बेसिकली देयर आर 4 पिलर्स. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड ओरिजिन ऑफ अर्थ, इट्स एटमॉस्फेयर, एंड देन द ओरिजिन ऑफ लाइफ, फर्स्ट लाइफ ऑन द अर्थ. The third part is all the evidences from all quarters, which will convince the layman that evolution actually fact it is happening. तो जब हम evidences के different aspect को analyze करेंगे as a classroom type का, तो उसमें से पूरा convince हो जाएंगे. कोई layman भी convince हो जाएगा कि सच में evolution एक fact है और ये हो रहा है. And the theory part, Darwin is much more hyped, but before Darwin and after Darwin, there are different scientists has been worked. It started from Lamarck, then it is Darwin, there is neo-Darwinism. और आपने सही बताया था कि डार्विन के टाइम पे, डार्विन 1859 में अपना ओरिजिन ऑफ स्पीसीज दिए थे, लेकिन जो म्यूटेशन डार्विन को पता नहीं था. म्यूटेशन 1901 में ह्यूगो डी ब्राइस ने डिस्कवर किया. म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डी ब्राइस ने 1901 में दिया, और डार्विन ने अपना थ्योरी दिया था 1859 में. तो इसका मतलब डार्विन को जीन, इवन क्रोमोजोम की डिटेल्स भी, मियोसिस का क्रोमोजोम की ये भी नहीं पता था, क्योंकि क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी सूटन एंड बोवेरी से 1902 में आया. मियोसिस में क्रोमोजोम एंड डीएनए की डिस्कवरी हुआ, फिर जाके जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी 1928, फेडरिक ग्रिफिथ, फिर एवरी 1944 एक्सपेरिमेंट, फिर 1952 हर्शी एंड चार्ज एक्सपेरिमेंट, then experiment is Watson and Crick 1953, he proposed double helix model of DNA. तो ये चीजें जो हम थ्योरी पार्ट में जाएंगे. आफ्टर द डार्विन, न्यू डार्विनिज्म, देयर इज द कांसेप्ट अराइज which is very much
accurate concept for the evolution, theory for the evolution, that is the Hardy and Weinberg principle. So Hardy-Weinberg principle, which accumulate all the sources of variation, including recombination, natural selection, mutation, everything, genetic drift, वो सब हम फेज वाइज इसको डिस्कस करेंगे। और मैं चाहता हूं कि हर सेशन में आधा घंटा हम कुछ क्वेश्चन भी ले लेंगे, और आपको मैं चाहता हूं मेरे साथ रहें और हम साथ साथ उसको करें और डिसाइड करें। श्योर सर। जी जी। इनफैक्ट मैं यहाँ पे सर मेंडल का भी नाम लेना चाहूंगा। डार्विन एंड मेंडल कंटेम्पररी थे सर, बट अनफॉर्चुनेटली they could not No, I share totally their agree. knowledge. बट उनको एक दूसरे के रिसर्च के बारे में पता ही नहीं था सर। अगर डार्विन को म्यूटेशन का आइडिया होता तो इट वुड हैव बीन रियली कंप्लीट कॉन्सेप्ट। ग्रेगर मेंडल 1884 में उनकी कंसेप्ट जो दिए थे, बट ही वाज नॉट अ बायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट, ही वाज अ स्टैटिस्टिशियन और नॉट renowned after the death. Yes, Actually, yes. Mendel's theory is rediscovered by Carl Corin's Fishermark Agree. and Price. That's why Agree. both knowledge could not accumulate. मेंडल को भी म्यूटेशन तो पता नहीं था, बट जेनेटिकल एलील्स और इनहेरिटेंस पता था, वो असेंबल हो जाता तो जी, and that is वो करेक्ट हो जाता है डार्विन का कंसेप्ट। डार्विन में कंसेप्ट में करेक्शन भी वही हुआ है, लाटर वही करेक्ट हुआ। यस, एब्सोल्युटली राइट सर, एब्सोल्युटली Thank सर। you. मजा आ गया सुन के। Yes, sir. Thank you. जबरदस्त है। और इसी वेबसाइट को मतलब मैनेज करने के लिए जो हमको राशि चाहिए, अभी जी। तो हम अपनी जेब से कर रहे हैं, जो भी है, हाँ सर। जो भी हम अपनी जेब से डाल रहे हैं, पर इसके लिए हमने सुपर चैट शुरू किया है। यूपीआई जी। सुपर चैट जो भी है, आप इस वेबसाइट को सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू योर फाइनेंशियल सपोर्ट। ये बहुत आगे तक जा सकती है वेबसाइट। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। आप जो सुपर चैट में हमको हेल्प करेंगे या यूपीआई पेपाल से हेल्प करेंगे, वो ये वेबसाइट के लिए, वो इस वेबसाइट के काम में आएगा। तो वी ऑल्सो हैव टू परहैप्स हायर सम कंटेंट राइटर्स एज वेल, एंड वी ऑट टू पे देम वेल। तो उसके लिए भी हमको पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो वील वर्क ऑन इट सर। यस, तो दैट इज व्हाई लास्ट स्ट्रीम में मैंने प्रॉमिस किया था कि जो वेबसाइट के लिए हम लोगों ने लाइव स्ट्रीम में चैट के लिए ऑप्शन इनेबल किया है, कुछ चैट्स हमें रिसीव, तो उसकी रिजल्ट ये है कि डिस्टोपिया टू रीजन इज अप एंड रनिंग विद न्यू फीचर्स एंड एज एंड शायद आप फ्रीज हो गए शायद। हेलो। वेबसाइट जो है वो एक फुल फ्लेजेड सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट की तरफ हम जाए, फुल फ्लेजेड सोशल नेटवर्किंग, और हम इसकी ऐप पर भी वर्क कर रहे हैं। ये ऐप जो है आपको iOS और एप्पल स्टोर दोनों, iOS और गूगल दोनों पे अवेलेबल होगी। एब्सोल्युटली सर। जी। आपकी आवाज थोड़ी कट गई थी बीच में, तो इट्स ओके। अच्छा, हाँ मैं वही कह रहा था। तो ठीक है, फिर हम लोग हाँ पेनेसिया 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 यार यार आपने जो है क्या काम किया है। मैंने तो बोलते हैं मैंने ना, श्री गणेशा किया सर। ईद के दिन लिफाफे में जो ईदी देते हैं अक्सर घर में, वो वैसा आपने किया है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अरे सर, माय प्लेजर। मैं थोड़ा पेनेशिया के चैनल पर भी मैं बात करूंगा कि पेनेशिया का भी इसका ही अपना चैनल है, द सेम नेम पेनेशिया, और उसको भी सब्सक्राइब करिए। मैंने ऑलरेडी उसका लिंक जो है डाल दिया है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू इस चैनल। और वहाँ पे आपको साइंस ओरिएंटेड वीडियोस मिलेंगे। एंड स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर जयंत राज, जो इतना टाइम देते हैं, मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक वी आर नियरिंग टू 1 hour 45 minutes। उनके बगैर मैंने समझता हूँ कि हम्टी डम्टी पॉसिबल है। बिल्कुल विदाउट साइको साइक वाइब एंड जयंत राज, आई डोंट थिंक सो दिस हम्टी डम्टी सीरीज वुड हैव बीन पॉसिबल। सर आप दोनों के साथ, और स्पेशली जयंत के साथ, जयंत सर के साथ मजा आता है, मतलब उनका नॉलेज जबरदस्त है। जबरदस्त नॉलेज है सर। बिल्कुल ऑल ओवर टू जबरदस्त नॉलेज है सर। तो उनके बगैर तो हम्टी डम्टी कर ही नहीं सकते थे। वी हैव टू गिव क्रेडिट टू एवरीवन। तो जिसको भी सपोर्ट करना है या कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो ये वेबसाइट के लिए सर कंट्रीब्यूट करिए। ये सर, ये यहाँ पर भी एक अप्रिसिएशन आया फरहान साहब के पास है। ओह आई एम सो सॉरी। फैंटास्टिक एफर्ट विद द वेबसाइट एट टीम ESD टू। थैंक यू सो मच फरहान जी, एब्सोल्युटली।
Thank you very much, sir. And also Bikash has also contributed some 50. Always support good work. Thank you so much, Bikash Thank you very much, sir. Paikare ji. We really Thank you. appreciate that. So Thank you, Vikas ji. Hmm. He is appreciating me, and thank you very much. Thank you very much, sir. ये इसको आप ये अच्छा ये बच्चा फिर आ गया गुड मैन ये मुझे हाँ, मालूम नहीं लड़के था। को मैंने 5 मिनट के लिए मोमिन बच्चा है, ठीक है, जज्बाती है बेटा। हाँ, अच्छा रहो, कोई खुश बात रहो नहीं। आप। It happens, it happens, it happens. हैपेंस हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा किसी भी आइडियोलॉजी से नहीं, हम लोग अपना रैशनैलिटी और साइंटिफिक टेम्परामेंट हम बढ़ाना चाहते हैं हमारी पब्लिक में, ताकि देश जो है तरक्की करे। यू नो दिस कंट्री इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, बहुत महान देश है हमारा, जहाँ पे इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशन है जो शू स्ट्रिंग बजट पर काम करते हैं, शू स्ट्रिंग बजट पर। बिल्कुल, सर, तो इफ ये बहुत पॉसिबल ही महान इनको देश ले है। लीजिए ना सर, थोड़ा डिस्कस भी करेंगे। हाँ, ये नहीं नहीं नहीं, आज अगर हम लोग नहीं आएंगे, वो तो हम लोग इंटरेस्टेड भी नहीं है भाई उनको एक्सप्लेन करने में। हम सिर्फ ये बताना ओके। चाहते हैं कि हमारा हिंदुत्व पे नहीं, हमारा हिंदुस्तान पर है। बिल्कुल जो भी लोग हिंदुत्व भी लेके आते हैं तो हम उसको भी डिबंक करते हैं, उसे भी हटाते हैं। आई थिंक दैट हिंदुस्तान हिंदुत्व से बड़ा है। एंशिएंट एलियंस वाली नेक्स्ट स्ट्रीम सर। हाँ जी, एंशिएंट करेक्ट। एलियंस तो बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देवाशीष फिर गालियां भोजपुरी जी, मुझे थैंक यू पड़ेंगी, वेरी मच। फिर हाँ, मुझे वो तो है गालियां सर, पड़ेंगी। बिल्कुल सर, वो तो नो सर। फिर वही, फिर आप गुडमैन को पता सर नहीं है कि मुझे अगर वीडियो लिंक दीजिए सर, मैं थोड़ा प्रिपरेशन कर लूंगा। बिल्कुल 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 नेक्स्ट स्ट्रीम की लिंक यहाँ शेयर कर दी जाएगी और अभी आप देख सकते हैं वेबसाइट पर भी जाके ये मैं स्ट्रीम सिर्फ लाइव यही वहां पूछ भी रहा हूँ चल सर रही कि इसको उसका हम्टी डम्टी करना है कि जैक एंड जिल करना है, पहले वो सोच लेंगे। देवाशीष जी, थैंक यू वेरी मच सर आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। है। जी बहुत बहुत शुक्रिया देवाशीष जी। और आई थिंक वेबसाइट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। द वेबसाइट URL इज www.dystopia2reason.in। नए फीचर्स हैं, फुल फ्लेजेड फोरम है, आप जाएं, फोरम में रजिस्टर हों, अपने थॉट्स रखें, थ्रेड्स बनाएं, मीडिया शेयर करें, फाइल्स शेयर करें। जी, एंड आई रियली अप्रिशिएट इफ समबडी हैज एक्सपर्टीज इन समथिंग। अगर आपकी बिल्कुल कुछ चीज में एक्सपर्टीज है तो वो कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बेहतर होगा। जैसे कि जयंत बिल्कुल रथ जी है, जिनकी एक्सपर्टीज बायोलॉजी फील्ड में, वेनेसिया केमिस्ट्री में PhD है, तो जी जिसमें भी मतलब इस मामले में मैं एक्सपर्टीज को पहले प्रेफरेंस देता हूँ। इफ समबडी हैज एक्सपर्टीज एब्सोल्युटली इन समथिंग, सो एब्सोल्युटली दे आर ऑलवेज द नंबर वन प्रायोरिटी। अगर आपको जी लैंग्वेज में भी एक्सपर्टीज है तो बहुत अच्छी बात है। किसी को बहुत मतलब अच्छी बात हमारे है। साथ वो भी जुड़े हैं, क्या नाम, हमारे अलबर्तानवी जी, जिनके साथ हम कुछ प्रोग्राम्स करने वाले हैं, एंड ही इज अ लिंग्विस्ट। तो लेट्स रियली मेक इट अ हब ऑफ नॉलेज, श्योर, व्हाई नॉट, व्हाई वर्चुअल नॉट, हब ऑफ नॉलेज। व्हाई नॉट, डेफिनेटली डेफिनेटली। I think, sir, so it wraps up today's यस सर, conclusion of Humpty Dumpty यस, Part 2. एब्सोल्युटली। So I would thank all our viewers and request all of you to go and visit our website and register at the forum and start new threads. And until the next live stream, we shall all be seeing you. Take care. Bye-bye. Stay safe. बाय बाय, Jai Hind. जय हिंद। बाय Bye बाय। bye.